beautiful, beautiful, happy morning. Good morning, Good Priya. morning, Varsha. Good morning, ma'am. Good morning. Good Good morning, morning, everyone. Varshा जी. Yeah, you can see the Sat Shri Good morning, Akal, salam everybody. sabhi Good ko. see the beautiful view Good morning, of Priya. Sri Lanka. I'm Priya Nehra. Happy morning. Welcome you all on behalf of Dr. Deepti Verma. Neha. So here in the morning session, wow, this is the view Priya, from see this beautiful Sri Lanka, view. right, ma'am? Yeah, this is Sri Yeah, Lanka we ka understand. Velagama. Wow, Amazing, wonderful. amazing. Thank you, thank you, thank you. Thank you See the so much, beautiful ma'am. Thank you so property. much. Sarita ji, Thank हमको you 5 so much elements. for showing us Oh Sri yes, Lanka that is while why we I are in was waiting India. कि सबको दिखा दूं. You so Amazing generous. हम hotel. लोग यहाँ Beautiful. बैठे हम लोग देख पा रहे हैं. Wow. Thank you so much, See? Sarita ma'am. Thank you. Like, thank you from the bottom of our hearts. Yes. आप Thank लोग you. सब अपना wish मांग लो. Yes. हाँ. Yeah, dreams and desires come true. बिल्कुल Yeah. बिल्कुल. Thank you, sun thank you. sun Thank मुझे you तो लग रहा है so sun much. भी Thank sun you. भी दिख रहा है मैम, है ना? So sun yes. भी दिख रहा है. सन अभी Yeah, बस उगने वाला sunrise है, भी अभी हो उगा रहा है नहीं. ना. हाँ, मतलब पूरे 5 Yeah, elements it's हमको about. दिख रहे हैं. सारे बिल्कुल. आज का यहाँ पर है ना चैप्टर भी हमारा सनराइज 5 जल्दी elements का होता ही है. है. हाँ, 5 elements. Wow. Yes. Yes, all 5 elements. Beautiful, beautiful. Thank you. Thank you so much, Sarita ji. What a Yes. beautiful start to this morning today. Yes. Great Wow. start. Awesome. Thank you. Thank you मुझे so मजा आ much. गया because I wanted to show कि सबको दिखाऊंगी. Oh, such a beautiful view. आप बहुत ऊपर खड़े हो क्या? मैं 10th floor पे हूँ. या इतना अच्छा लग रहा है. बहुत My सुंदर है, God. बहुत सुंदर. बहुत अभी सुंदर. we are going Thank for you so whale much. watching. अगर whale Oh, दिखेगा तो मैं क्लास के बीच में दिखाऊंगी. sure, ma'am. Sure. Please. बिल्कुल दिखेंगे सरिता जी Yes, आपको, अभी देख after लेना. 10 minutes का drive है यहाँ another place, and then he will take us in the center of the beach and he'll try to show us whales. Wow, wow, wow. Yes. May you Chalo, get your start your desired session, outcome. This Priya. is the season for migration. You will definitely see. Yes, Sarita yes. ji. Thank you. जिसने भी बोला, wow, I love you. Sonia ji ने बोला. Thank you. Yes. Thank So you, let's. love you. Thank you, thank you. So let's come to our topic. Yes. So here in the morning, we study 2 books. Both the books are written by Rhonda Byrne. The first book that we study is obviously we all know The Magic, written by Rhonda Byrne, of course. And the second book that we'll be reading is Hero. So the first book will be read by Bitti ji today. So I will open the book right now. So we are on the 8th day of our magical journey, the magic book. So where is it? Yeah. So in the very beginning, I would like to say thank you to all of you for being so consistent with your practices, for regularly coming into the sessions and attending the sessions with your full heart. Thank you so much to all of you. Thank you to all the beautiful hearts sitting in this room right now. We are all 63 here. Eventually, many other participants will be joining us. So joining us to savor this beautiful sessions teaching. Actually, we are savoring the sessions. The way we are connected with it, na, हमको लगता है कि like when we are not attending the sessions ना, हमें लगता है कि something is missing. मतलब हमारा दिन की शुरुआत ही नहीं होती है जब तक हम लोग सुन नहीं लेते हैं, देख नहीं लेते हैं sessions को. So it's like that. So I get so many messages from all over the world कि हम लोगों को ये sessions इतने अच्छे लगते हैं, and for that I would like to pay my sincere gratitude to you too. Because with the help of YouTube only, we can make people aware. We can make people aware of the beautiful practices of gratitude. So thank you so much, YouTube, for this. And thank you to all our YouTube listeners and viewers. Thank you so much. Thank you for all your love and support to us. So yeah. So today we are in the day 8 of the magical practice. The name of the chapter is the magic ingredient. So what is this magic ingredient? We all are having food and water. हम लोग जो भी खाना खाते हैं, जो भी हम लोग पीते हैं, तो हम लोग उसको अच्छे से खाना इसलिए खाते हैं कि हमारी बॉडी उससे बनती है. Right from the beginning, when we are in the zygote form, हम लोग अपने मॉम के वूम में जब होते हैं,
उसके बाद हम लोग इतना बड़ा इंसान बन जाते हैं, मैं इतनी बड़ी बन गई हूँ, इट्स बिकॉज कि हम लोगों ने खाना खाया है, मेरी मॉम ने जो खाना खाया वो मेरे पास पहुंचा, राइट? तो वहां से लेकर वहां से शुरू होकर हम इतने बड़े एक क्रीचर बन जाते हैं. So slowly but steadily, we are giving fuel to our body, है ना? हम अपने पेट में खाना डालते हैं, and हमारा जो खाना है, जो हमारे दिमाग में डालते हैं हम लोग, that is our thoughts and behavior things, जो कि हमारे साथ शुरुआत से लेकर आज तक attached है. हमारे खाना जो हम लोग डालते हैं अपने पेट में वो, और हम लोग अपने ब्रेन को जो खाना खिलाते हैं, द थॉट्स, वो जो चीजें हैं, जो हमारा जो लिटरेचर है, जैसे हम लोग यहाँ पर मैजिक बुक पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग हीरो बुक पढ़ेंगे. सो व्हाट यू आर फीडिंग टू योर ब्रेन, सो वी हैव टू कम इन कंसेंसस विद दैट. हम लोगों को एक समझौते में पहुंचना पड़ेगा जिसमें वी विल बी अलाइनिंग आवर ब्रेन, our heart, and our gut. So these three things are very, very important for us. So Rhonda Byrne इसीलिए इन तीनों चीजों को अलाइन करके हम लोगों को बताएंगी कि किस तरह से हम अपने ब्रेन को, अपने हार्ट को और अपने गट को अलाइन करके हम लोग अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव कर सकते हैं. So we all know about the chakra balance and all, ना? उसमें भी देखना हम लोग हमें दिखता है कि ये जो एरियाज है ना, ये हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो टुडे वी विल बी फोकसिंग ऑन द गट एरिया. गट एरिया पे फोकस करेंगे. हम लोगों को पता ही है ना, वी आर व्हाट वी ईट एंड वी आर व्हाट वी थिंक ऑल्सो. हम लोग जो सोचते हैं वो हमारा ब्रेन सोचता है, एंड हम लोग जो खाते हैं वो हमारे पेट में आता है. सो वॉट एवर वी आर ईटिंग is contributing to our physical as well as our mental health. So we have to be very mindful while eating or drinking anything. So today's chapter will keep us grounded with the ground. यानी कि हम लोग आज अपने 5 तत्वों के बारे में पढ़ेंगे. 5 तत्वों का जो सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है ना, अर्थ एलिमेंट, उसके बारे में हम लोग फोकस करते हुए सारे 5 तत्वों को हम लोग थैंक यू कहेंगे. आज ये ग्रैटिट्यूड का जो मंत्र है ना, ये ग्रैटिट्यूड का जो ब्यूटीफुल जो इंग्रेडिएंट है ना, वी हैव टू डिसॉल्व इट इन आवर फूड एज वेल एज आवर ड्रिंक. Whatever we are drinking and whatever we are eating, we are deliberately dissolving this beautiful ingredient of gratitude into our life. So how will we be able to do this? उसके लिए हमें रॉन्डा बर्न बताएंगी कि हमें क्या करना है. हाँ जी बेटी जी, आप शुरू कीजिए पढ़ना. Day 8, the magic ingredient. Yes. So in this picture, we can see some beverages kept on the table, और साथ में एक सैंडविच रखा हुआ है. और इस बेवरेज के चारों तरफ में जो है आपको नजर आएगा ग्रैटिट्यूड का मैजिकल डस्ट. ग्रैटिट्यूड के जो ये स्पार्कल्स हैं, वो किस तरह से इस खाने में और इस पानी या कॉफी या कोई भी जूस या कोई भी ड्रिंक है, किस तरह से हम इसको घोल के, ये स्टरर है साथ में, चम्मच स्टरर जो भी बोलो आप, इससे हम लोग किस तरह से घोल के अपने ग्रैटिट्यूड के मैजिकल पावर से इसको मैजिकल बनाएंगे. ये ऑलरेडी मैजिकल है. जब ये पृथ्वी से जब ये उत्पन्न हुआ, कोई भी प्रोडक्ट, when it is like when we harvest it from the earth, when it comes directly from the earth, it carries all the goodness of the nature. It does carry. कुछ भी खाना है सॉलिड फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, अगर कोई वाटर या कोई भी इस तरह का कोई फ्लूइड ड्रिंक है, सो इट एक्चुअली कैरीज ऑल दोज थिंग्स. बट हमारे जो ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट होते हैं, हमारे जो ये थॉट्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, उनके कारण it gets dissolved in the food and the water that we are having. So उसको हम लोगों को प्यूरिफाई करने के लिए will be needed. It's vital to dissolve gratitude into it. So let's move on. A thankful heart hath the continual feast. W.J. Cameron, journalist
and businessman. Giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to the ancient Egyptians. With the fast pace of life in the 21st century, taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind. But using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. If you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not think or function normally. Your body felt weak. You might have started to tremble. Your mind became confused and your feelings palpitated. All of these can happen after not eating for just a few hours. You need food to live, to think, and to feel good. And so there is a great deal to be grateful about food. To feel even more gratitude for food, take a moment and think about all the people who contributed to you having food to eat. For you to eat fresh fruits and vegetables, the growers had to plant and nurture the fruit and vegetables with continuous watering, protecting them over many months until they were ready for harvesting. Then there are pickers, the packers, and the distributors, and the transportation people who drive enormous distances day and night, all of them working together in perfect harmony to ensure that every fruit and vegetable is delivered fresh to you and is available year around. Think about the meat growers, fishermen, dairy farmers, coffee and tea growers, and all the packaged food companies who work tirelessly to produce the food we eat. The world's food production is a breathtaking orchestration that takes place every day. And it's unfathomable that it all works when you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies to stores, restaurants, supermarkets, cafes, airplanes, schools, hospitals, and every home on the planet. Food is a gift. It's a gift of nature because there would be nothing for any of us to eat if nature didn't supply us with the soil, nutrients, and water to grow food. Without water, there would be no food, vegetation, animals, or human life. We use water to cook our meals, grow our food, maintain our gardens, supply our bathrooms, sustain every vehicle that moves, support our hospitals, fuel, mining, and manufacturing industries, enable transportations, make our roads, make clothes, and every consumer product and appliance on the planet, make plastic, glass, and metal, make life saving medications, and build our homes and our every other building and structure. And water keeps our body alive. Water, 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 glorious water. If there is a magic on this planet, it is contained in the water. Lauren Astley, anthropologist and natural science writer. Where would we be without food and water? We simply wouldn't be here. None of our family or friends would be here either. We wouldn't have this day or any tomorrow. But here we are on this beautiful planet together, living life with its challenges, ecstatic joys, because of nature's gifts of food and water. To say the simple magic words, thank you, before you eat or drink anything
is an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. The incredible thing is that when you are grateful for water, food and water, it doesn't just affect your life. Your gratitude also impacts the world supply. If enough people felt gratitude for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need. By the law of attraction and the Newton's law of action and reaction, the action of mass gratitude must produce an equal mass of reaction, which would change the circumstances of scarcity of food and water for everyone on the planet. In addition, your gratitude for food and water keeps the magic continuing in your life, and it will weave its glorious golden thread through everything that is dear to you, everything that you love, and everything that you are dreaming of. In ancient times, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessing. And when you look at the theories and discoveries that quantum physics have made in recent times, such as the observer effect, the ancient may very well have been right. The observer effect in quantum physics refers to changes that the act of observation makes on whatever is being observed. मैम एक वर्ड चला गया ऊपर ना. Imagine if focusing gratitude on your food and drinks changed their energy structure and purified them, so that everything you consume had the ultimate effect of well-being on your body. One of the ways to experience the magic of gratitude instantly with food and water is to really savor what you are eating or drinking. When you savor your food or drinks, you are appreciating them and being grateful. As an experiment, next time you are in the middle of eating food or drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrate on the taste of food in your mouth or the flavor of the liquid before you swallow it. You will find that when you focus on the food or drink in your mouth and savor it, the flavors seem to explode. And when you don't focus, the flavors weaken dramatically. It's your energy to focus and gratitude that instantly enhances the flavor. Before you eat or drink anything today, whether you are about to eat a meal, a piece of fruit, or a snack, or have a drink of anything, including water, take a moment to look at what you are about to eat or drink, and in your mind or out loud say magic words, thank you. And if you can, just take one mouthful, really savoring it. It will not only increase your enjoyment, it will help you to feel far more gratitude. You can also try something I do, which helps me to feel even more gratitude. When I say the magic words, I wave my fingers over my food or drink as though I am sprinkling them with magic dust. And I imagine that the magic dust instantly purifies everything it touches. Doing this has helped me really feel that gratitude is the magic ingredient, and I want to add it to everything I eat and drink. If you find it more effective, you can imagine that you have a shaker of magic dust in your hand and you are shaking the magic dust out of the shaker all over your food before you eat it or into every drink. If at any time during the day you forget to say the magic words thank you before you eat or drink anything,
as soon as you remember, close your eyes, go back in your mind to the time when you forgot, visualize yourself in your mind for a second or two before you eat or drink, and say the magic words. If you forget to be grateful for food and drinks multiple times in a day, then repeat this same practice tomorrow. You can't afford to miss a single day in building your gratitude. Your dreams depend upon it. Being grateful for the simple things in life, like food and water, is one of the deepest expression of gratitude. And when you can feel the degree of gratitude, you will see the magic happen. Magic practice number 8. The magic ingredient. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, before you eat or drink anything today, take a moment to look at what you are about to eat or drink, and in your mind or out loud, say magic words. Thank you. If you want, you can sprinkle your food or drink with magic dust. Third, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best things that happen during the day. Thank you. Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, Vidyaji. Thank you. Love your reading. So, yes. So here we all have studied. Rhonda Byrne has written this chapter in such a lucid language कि हम लोग अगर पढ़ेंगे तभी हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि what she actually wants to tell us. So अगर हम लोग ये पता करें, हम लोगों ने तो बचपन से हमारे कल्चर में ये बहुत ही क्लोजली हमने देखा है कि किस तरह से हम लोग सिंपलेस्ट जो चीजें हैं हमारी लाइफ की, उसके लिए हम लोग थैंक यू बोलते थे. हम नहीं बोलते थे, मैं तो नहीं बोलती थी, लेकिन मैंने देखा था अपने से बड़े बुजुर्ग जो होते थे ना हमारे घर में, जैसे ताऊ जी, नाना जी वगैरह हैं, तो वो क्या करते थे, पापा मेरे फादर भी, खाना खाने से पहले he would keep a bite for I don't know किसके लिए रखते थे, तब तो मुझे नहीं पता था किसके लिए रखते थे, वो क्या था, वो शुक्राना करते थे, क्या करते थे, वो मुझे उस टाइम बिल्कुल भी पता नहीं था. बस मुझे ये पता था कि वो खाना जब सामने रखा होता है, नंबर 1 चीज नीचे बैठकर खाते थे. तब नीचे बैठकर खाते थे, नीचे कुछ आसन वगैरह बिछा के नीचे बैठ के खाते थे. और मेरे दाऊ जी का मुझे बिल्कुल ही क्लियरली याद है, क्योंकि वो आज भी वो करते हैं, वो चीज अभी भी करते हैं, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छे से याद है उनका कि वो क्या करते थे, खाना प्लेट में रखा हुआ है ना, उनको थाली के अपने हाथ में, सबसे पहले अपने हाथ में कुछ कुछ बोलते थे ऐसे आंखें बंद करके, फिर अपने हाथ में पानी लेके उसको छिड़कते थे, फिर उसको नमस्ते मतलब प्रणाम करके फिर अपना खाना शुरू करते थे. So this is the practice he was following from that day, from the day like he got his conscious till now. अभी भी करते हैं वो इसलिए, वो क्या है, that is paying gratitude to the food and the water that is going inside our body. So अगर हम लोग अपने खाने को और अपने पानी को ब्लेस करके, उसको उसके लिए शुक्राना करके अगर हम खाएंगे पिएंगे, तो हमारे शरीर में और हमारे दिमाग में, लाइक बोथ आर हेल्थ, लाइक आर फिजिकल एज वेल एज आर मेंटल हेल्थ, उनके लिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अगर हम लोगों ने हिपोक्रेटिस की बात भी अगर हम लोग याद करें, तो वो बोलते थे फूड इज दाई मेडिसिन, द मेडिसिन इज दाई फूड. यानी कि आपका जो खाना है ना, वो ही आपके लिए मेडिसिन है. आप जो है अपने खाने से ही अपने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को ले सकते हैं. आज हम लोगों को सभी को पता है कि गले में खांसी हुई तो हमने हल्दी ले ली. हल्दी, कच्ची हल्दी कहाँ से आती है, जमीन से आती है. हम लोग बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि वी गो बैक टू आवर सॉइल. हम अपने सॉइल में जाके, हम अपने ग्राउंड में जाके हम लोग सोचते हैं कि व्हाट थिंग आई हैव टू टेक, लाइक इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ मेडिसिन, हम लोग पहले कोशिश करते हैं कि हम लोग किस तरह से कोई नेचुरल रेमेडी के थ्रू अपने आप को ठीक करें. तो दैट इज अ मेडिसिन. दैट वे फूड इज अ मेडिसिन, राइट. मदर नेचर ने जो फूड है ना, उसको भी इस तरह से बनाया हुआ है कि इट सस्टेन्स सो मच.
हम अगर आप लोग देखेंगे कि सर्दियों में आने वाले जितने भी फ्रूट्स हैं या फूड है, जैसे गाजर है, मूली है या ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह हैं, वो सब अपने अंदर सर्दियों के हिसाब से बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उनके अंदर पैक्ड होता है। क्यों होता है वो पैक्ट? क्योंकि जस्ट आफ्टर मॉनसून हमारे विंटर्स आते हैं, तो पूरी की पूरी धरती में पानी की, लाइक हमारा जो यहाँ पर सिस्टम है, पूरे इकोसिस्टम में पानी की प्रचुरता रहती है, तो उसमें हमारे ग्रीनरी बढ़ती है। और वो ग्रीनरी जो बढ़ती है, उसके बाद जो गाजर जैसे सब्जियां जो हैं, वो अपने अंदर वो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रख देती हैं, सो दैट हार्श विंटर्स भी अगर हो, अगर पाला पड़े, तो भी वो सस्टेन कर पाए, तो भी वो सरवाइव कर पाए। मतलब आप देखिए, वो छोटे से आलू से लेकर हमारी पूरी की पूरी बॉडी है, हमारा का पूरा जो बीइंग है, उसका पूरा व्यक्तित्व ही हमारा जो फूड है वो चेंज करता है। हम लोग जो भी खाना खाते हैं, हम लोग वैसे बनते जाते हैं। सो व्हाट डज कैमरन सेज, ये जो डब्ल्यू जे कैमरन है वो ये बोल रहे हैं, अ थैंकफुल हार्ट हैथ अ कंटिन्यूअल फीस्ट। मतलब कि आप जब अपने हार्ट को शुक्राने से भर दोगे, तो आपका हर खाना फीस्ट होगा, आपका हर दिन सेलिब्रेशन होगा, आपका हर दिन पार्टी होगा। अगर हम लोग अपने हार्ट में शुक्राने को भर देते हैं, वो हम लोगों को पता है, हम लोग करते हैं ऐसा, लेकिन हम लोग वो किस तरीके से कर सकते हैं? हाउ आवर गट इज कनेक्टेड टू आवर ब्रेन, आवर माइंड। आपको पता है कि हमारे पेट के अंदर 100 मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। वो जो न्यूरॉन्स है, एक बहुत बड़ा जो वेगस नर्व है, उसके साथ हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है। हम लोग जो भी खाते हैं, पीते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि हमारा पेट भर चुका है, हम और नहीं खा सकते? कभी हम पार्टी में जाते हैं, कहीं और जाते हैं ना, तो इतना खाना खा लेते हैं कि हमको लगता है यार और कुछ भी नहीं, अब पानी भी नहीं जा सकता हमारे पेट में। But like, how do you get that feeling? You get that feeling because your brain tells that, right? So उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को बहुत ही ज्यादा माइंडफुली और सोचकर खाना चाहिए, ऑब्जर्व करके खाना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास जो खाना आएगा, what we'll do is, हम लोग बचपन के टाइम पे जाएंगे। What a baby does, कभी किसी बेबी को अगर देखा हो, इन्फैंट जो छोटा बच्चा होता है, अभी अभी पैदा हुआ हुआ होता है, वो अपनी बेली ब्रीदिंग करता है। वो सांस, उसके जो नाक अगर ब्लॉक भी हो ना, कई बार देखना बच्चा जब सांस लेता है, उसके आवाजें आती हैं, फू 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 आवाजें आती हैं, बट जैसे ही वो इनहेल करता है, उसका बेली ऊपर जाता है, एंड एक्सेल जब करता है, वो बेली उसका डाउन आता है, नीचे आता है। सो दैट इज कॉल्ड एज गट ब्रीदिंग। सो अगर हम लोग अपने गट को माइंडफुल वे में यूज करते हैं, तो आवर लाइफ इवेंचुअली विल गेट बेटर एंड बेटर एवरी डे। This will be the phenomena of our life, that our life is getting better every day with every morsel of food that we are eating, or every sip of water, or any beverage that we are drinking. We are making our body, we are making our cells, and what we can do is, like, we are consuming this good data for our brain. हम अपने ब्रेन में ये बहुत ही अच्छा डेटा डाल रहे हैं ना, तो अगर हम अपने मुंह से भी अच्छी डेटा, अच्छा खाना अगर डालेंगे पेट में, तो और तो कोई चांस ही नहीं रह जाता ना हमारा हमारा ध्यान भटकने का, हम लोगों को मिजरीज में जाने का। नो अदर वे। So what we'll do is, we will invoke, we will saturate our food before consuming it with gratitude. बहुत ज्यादा जरूरी है, because our gut health जो है, वो डिफाइन करता है हमारा फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसा होगा, हमारे थॉट्स कैसे आएंगे। हम लोग अगर देखें, तो वो जो आलू हमने जमीन में से उठाया है, एंड अस, हम लोग एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग सारे के सारे उन्हीं 5 तत्वों से बने हुए हैं, है ना? हम लोग 5 तत्वों से वो आलू भी बनाए, हम लोग भी वो 5 तत्वों से बने हुए हैं। सो जब आप खाने को अपने मुंह में डालते हो, माइंडफुली आप खाते हो, आंखें आप लोग देख कर, पहले आप खाने को देखेंगे, फिर उसमें अपना प्यार डालेंगे। हम लोग ये सोचेंगे कि हमारे खाने के जो प्लेट है, हमारे सामने जो, मान लीजिए रोटी, सब्जी, दाल, चावल या कोई भी ड्रिंक रखा हुआ है, आप ये सोचो कि वो सब्जी जो आपकी बनाई हुई है, उसमें कुछ मसाले लगे होंगे, वो मसाले आए होंगे केरला से,
या कहीं और से जहां पर वो भी, जैसे मान लीजिए सिनेमन है, या मान लीजिए काली मिर्च है, ये सब चीजें हमारी स्पाइसेस हैं, जो ज्यादातर मसाले हैं वो हमारे सदर्न इंडिया से आते हैं, तो वहां से आया हुआ है। देन जो गेहूं, अगर रोटी आप खा रहे हो तो गेहूं हमारे पंजाब में उगाया गया है, वहां से आया है। अगर आपके खाने में आपका राइस है, तो वो आपके जो ईस्टर्न साइड्स हैं या जो भी कोस्टल साइड्स हैं वहां से आया हुआ है। सो कहाँ कहाँ से कितने सारे लोगों की मेहनत है आपके उस प्लेट में। अगर आप कोई ड्रिंक पी रहे हो, तो आप ये सोचो, वो हम लोग डायरेक्टली समंदर में से पानी लेके नहीं पी सकते हैं, बिकॉज वो नहीं पीना चाहिए। इट इज ऑल लाइक, उसमें सॉल्ट होता है, बहुत सारे डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, और आजकल तो पता ही नहीं क्या क्या होता है। वट एवर वी आर थ्रोइंग, मतलब ओशंस आर लाइक, वी आर मेकिंग द ओशंस द गार्बेज ऑफ द वर्ल्ड, because we are throwing up our industrial wastes, the plastics, the everything. We are polluting the water. We are not keeping, we are not mindful even in that way. सो वट वी आर डूइंग इज, हमारे पास समुंदर का पानी नहीं आ रहा, समंदर अपने आप ही तैयार कर लेता है सॉल्ट। लाइक द व्हेन द लाइक सी बेड का जो पानी जो है वो सी बेड्स में वहां पर आता है जब, तो वहां पर सॉल्ट जो है अपने आप जनरेट हो जाता है। मतलब आप देखिए, नेचर इज डूइंग सो मच फॉर अस, हम लोग उसमें से निकाल कर ही तो यूज कर रहे हैं ना। जो पानी हमारे ग्लास में अभी रखा हुआ है, वो पानी कहाँ से आया हुआ है? अंडरग्राउंड से हम लोगों ने डिग करके उसको निकाला है। फिर जो हमारे जो गवर्नमेंट के जो वो डिगीज होते हैं, वहां पर उनको ट्रीट करके उनको प्यूरिफाई किया जाता है। प्यूरिफाइड वाटर हमारे घर में आता है, घर में आकर हम लोग, हमारा क्या करते हैं, हम लोग ओवरहेड टैंक्स में वो जाता है सबसे पहले। ओवरहेड टैंक से जब वो निकलता है, नीचे आता है जब हमारे, तब भी हम लोग उस आरओ से उसको क्लीन करके फिर पीते हैं। आप उस ग्लास ऑफ वाटर की जर्नी को देखो। आपकी फूड में जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्विजीन्स हैं, जो कहाँ कहाँ की क्विजीन्स हम लोग खाते हैं, उनको देखो। उनको देखोगे जब आप, और उसके बारे में सोचोगे, मतलब ईट, व्हाट इज ईटिंग माइंडफुली? ईटिंग माइंडफुली इज दैट व्हेन यू आर लाइक, आप जब सोचोगे ना कि कहाँ से आ रहा है, दैट मोमेंट यू आर थैंकिंग दैट पर्सन हु हैज ब्रॉट दैट इनटू योर प्लेट। आप ऑटोमेटिकली उसको थैंक यू कहोगे। ऑटोमेटिकली आपके मन में वो फीलिंग आएगा कि यू विल से थैंक्स एंड यू विल इट माइंडफुली। यू विल टेक टाइम टू च्यू योर फूड प्रॉपरली। यू विल टेक टाइम टू आइडेंटिफाई कि इसमें नमक, हाँ ठीक है, हल्दी का इसमें महक आ रही है, या सिनेमन का फ्लेवर आ रहा है, या इसमें ब्लैक पेपर का फ्लेवर आ रहा है, इसमें ना वो गरम मसाला इतना डाला हुआ होगा। आपको हर एक, अगर आप, अगर लेडी हो, लाइक हम लोग जो भी खाना बनाते हैं, चाहे लेडी हो कोई जेंट्स है, कोई भी है, लाइक द वन हु कुक्स द फूड ना, ही नोज कि स्पाइसेस कैसे होते हैं, सॉल्ट क्या होता है। तो यू विल कम टू नो दैट वेयर दिस थिंग्स आर कमिंग इनटू योर प्लेट। वही माइंडफुल ईटिंग है। उसके बाद आपको ये वॉच करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप कितना ज्यादा ओवर ईट कर रहे हो, क्योंकि जब आप ऑब्जर्व करके, सोच कर, थैंक यू करके, माइंडफुली खाओगे ना, तो आपसे खाया ही उतना जाएगा जितना आपकी बॉडी की जरूरत के हिसाब से। बिकॉज द टाइम विल कम, योर ब्रेन विल से दैट स्टॉप नाउ। So whenever you will be having in limitations in the, like you will be having the food that your body needs, it is actually a very less amount. हम लोग बहुत ज्यादा ओवर ईट कर लेते हैं क्योंकि हम लोग माइंडफुली नहीं खाते हैं। हम लोग बहुत जल्दी जल्दी में भागते भागते उठाया और खाते खाते चले गए, नहीं। वैसा खाना जो हम लोग खाते हैं, वो हमारे गले के अंदर जाके वो फंस सकता है। आपको पता है, जैसे ईसोफेगस है जो हमारा, कितना मतलब हमारी बॉडी को इतना ब्यूटीफुली डिजाइन करा है ना नेचर ने, कि हमारा जो सांस लेने की जगह भी वही है और खाना खाने की जगह भी वही है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस वाली जगह खुल जाती है, वो वहां से वो लेट खुल जाता है, वहां से हमारी सांसें आती है। और जब हम खाना खाते हैं, आप नेचर की क्रिएशन को देखिए कितना ब्यूटीफुल है, कि जब हम खाना खाते हैं वो हमारी सांस की नली में नहीं जाता, हालांकि वो नाली सेम है, बट स्टिल इट डजंट गो इनटू योर लंग्स। बट इट कैन व्हेन यू आर नॉट ईटिंग माइंडफुली। ये जा सकता है खाना। आपने देखा कभी कभी खाना खाते खाते ना हमें ऐसे हिचकियां आती है कि अब लाइक चोकिंग सेंसेशन हो जाती है। क्यों होता है वो? क्योंकि हम लोग सोचे समझे बिना फटाफट से जल्दी जल्दी से, मन में कुछ चल रहा है, खाना कुछ खा रहे हैं, हम वैसा खा रहे हैं। सो वी हैव टू ब्रिंग एवरीथिंग इनटू अलाइनमेंट, एंड व्हेन यू नॉट हैव टू डू इट डिलिबरेटली। अपने आप से नहीं करना पड़ेगा वो, बस
खाने को शुक्राना करके खाओगे, मदर नेचर का शुक्राना करोगे कि मदर नेचर है जिन्होंने इतनी खूबसूरत चीजों को बनाया है, जो हमारे बॉडी में के अंदर जाके समर्पित कर रहा है हमें, हम खा रहे हैं उसको मतलब वो हमें हम पर समर्पित हो रहा है, हम उसको खा के हम लोग वो न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है हम लोगों को, एंड दैट न्यूट्रिएंट इज एडिंग इनटू आवर सेल्फ, हमारी वेलबींग के लिए, हमारे मेंटल वेलनेस के लिए, हमारे फिजिकल वेलनेस के लिए हम लोग वो खाना खा रहे हैं। सो जब आप इस भावना से, ग्रैटिट्यूड की भावना से खाओगे और पियोगे, आपका वो खाना आपके शरीर को लगेगा, वो खाना ना तो ज्यादा होगा और आप अपने नेचर को भी लाइक आप अपने हमारे डिस्ट्रक्शन जो है वो हो रहा है ना, क्या हो रहा है कि जो एफ्लुएंट है वो खाना वेस्ट कर रहे हैं, उसके कारण क्या है, मतलब इनडायरेक्टली, लाइक आई विल टेल यू इनडायरेक्टली हाउ इट अफेक्ट्स द सप्लाई चेन। जो हमारी सप्लाई चेन है ना, कि वो किसान जब वो खाना उगाता है वहां से लेके हमारे प्लेट तक, ये पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन है वो किस तरह से काम करता है। अगर हम लोग माइंडफुली खाते हैं तो क्या होता है ना, हमसे उतना ही खाया जाएगा कि जितना हमारे लिए जरूरत होगी, हमारी पूरी फैमिली उतना ही खाएगी। तो जितना खाना हमारे लिए जरूरी है, बाकी एक्स्ट्रा खाना वो बचा, आपने मान लीजिए किसी को दिया भी नहीं वो, लेकिन आपका जो हमारा जितना यूजेज है उतना हमने यूज किया, तो जो बंदा जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता वो इनडायरेक्टली वहां पर जाएगा, कैसे कि इन्फ्लेशन नहीं होगा ना, मतलब इन्फ्लेशन राइज नहीं होगा, वो अफोर्डेबल क्वांटिटीज में रहेगा। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होता है, जितना ज्यादा हम चीजों को खाते हैं या जितना ज्यादा हम चीजों को यूज करते हैं, उसकी जो उसका रेट उतना ही बढ़ जाता है, उसका इकोनॉमिक्स है ये, उसका प्राइस उतना ही बढ़ जाता है। सो अगर डेलिबरेटली हम लोग माइंडफुली खाएंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, जितना हमारी बॉडी को जरूरत है उतना खाएंगे, तो जो एकदम चेन में जो बिल्कुल लोअर ग्राउंड में बैठा हुआ है ना इंसान, जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, उसको भी मिलेगी, वो डायरेक्टली आपकी सप्लाई चेन को अफेक्ट करता है। इसलिए ईटिंग माइंडफुली इज जस्ट नॉट मेकिंग यू वेल, इट इज थैंकिंग द होल सप्लाई चेन। स्कैसिटी नहीं होगी। आपको पता है जब ड्राउट आया था, एक फेमाइन्स पहले बहुत बहुत ज्यादा होते थे, सूखा पड़ता था, तो उस टाइम जैसे इंडिया में तो तब बहुत ही ऐसे खराब हालात थे, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने सबसे रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग अब एक दिन का, सभी सभी इंडियंस को रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग सभी एक दिन का फास्ट रखते हैं। तो जो हमने जो खाना बचाया, हमने फास्ट रख के जो खाना बचाया ना, वो खाना इसी तरह से तो जो नीडी पर्सन से उनके पास पहुंचता था ना, हम लोग जा जाके सबको खाना बांट के नहीं आते हैं, लेकिन आर कंजम्पशन अफेक्ट्स द सप्लाई चेन ऑफ द फूड, राइट फ्रॉम द फैक्ट्री व्हेन द प्रोडक्ट इज बीइंग मेड, और द किसान जो वो बना रहे हैं, आपको किसान सोचिए कितनी मुश्किल से, कैसे परिस्थितियों में जाकर वो एक चीज को उगाता है। अब मैंने कोशिश किया था अपने घर में उगाने के लिए कॉलीफ्लावर और ये बैंगन वगैरह, मैंने कोशिश किया था, तो मतलब हम लोग सोचते थे कि, मतलब उस टाइम मुझे पता चला एक्चुअली कि किसानों को हम बोल देते हैं कि वो लोग इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, वो ये यूज करते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ये करते हैं, लेकिन वो कितना जरूरी हो जाता है, क्योंकि पेस्ट जो है वो अटैक करते ही हैं, रोडेंट्स हैं, पेस्ट है, वो आपके जो जो भी आपके पैदावार होती है या ग्रेनरीज में जो रखा होता है सामान, उसको अटैक करेंगे, क्योंकि वो तो उनका फूड है। तो कितना मुश्किल होता है किसान को, वो बैठे रहना, उस चीज की रखवाली करना, ये देखना कि वहां पर कोई पेस्ट तो नहीं है, वो उन सब चीजों को देखभाल करते हुए वो प्रोडक्शन को पैकिंग करता है, इन स्पाइट, लाइक वो तबीयत भी खराब होती है तब भी उसको खेतों में आना पड़ता है, अपने काम करने पड़ते हैं, चाहे वो बड़ा किसान हो तो भी, चाहे वो छोटा किसान हो तो भी, हर किसी को अपनी पैदावार को बचाने के लिए, हम तक पहुंचाने के लिए, दे हैव टू टॉयल, उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, तब वो हमारे पास आता है। और हम लोग क्या करते हैं, कई बार शादियों में जाते हैं, इतना प्लेट भर लेते हैं, ये भी खाना है वो भी खाना है करके, नहीं मन करता तो भी जैसे टूट पड़ते हैं खाने के ऊपर, कि नहीं मुझे तो स्टार्टर्स भी लेने हैं सारे के सारे, उसके बाद मुझे पूरा का पूरा मेन कोर्स भी खाना है, हाँ मुझे डेजर्ट भी चाहिए। इतना ज्यादा ठूसा हमने अपने आप को, जितना ज्यादा हमने अपने आप को ठूसा, अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके सारी चीजें खाते ना, वो चीजें जो बनाने वाला है, जो जो होस्ट है, उसको भी इतना ज्यादा बनाना नहीं पड़ता, और वो इतना ज्यादा खाना वेस्ट नहीं होता। सो हम लोग जितना खाना हम लोग माइंडफुली खा रहे हैं, हमारा बॉडी वेट नहीं बढ़ रहा, हम उसको माइंडफुल रखेंगे तो हमारा बॉडी वेट नहीं बढ़ेगा, हम एकदम सही रहेंगे। जापानी सबसे अच्छा करते हैं, वो 80% खाते हैं, उनकी भूख का 80% खाते हैं,
जब उनको लगता है कि आधी चपाती मैं और खा सकता हूँ, तब वो अपना वहीं पर स्टॉप कर देते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो अपनी हेल्थ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दे आर द लॉन्गेस्ट सर्वाइवर्स इन द होल वर्ल्ड। सबसे ज्यादा जीने वाले इंसान वही है ना। और इसके अलावा क्या कर रहे हैं, वो अपनी सप्लाई चेन पे काम कर रहे हैं। हाँ, उनके वहां पर कोई गरीब नहीं होता इस तरह से जिसको खाना नहीं मिल रहा है। तो अगर ग्रैटिट्यूड की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि वी ऑल, लाइक व्हेन वी ऑल विल बी प्रेइंग फॉर द फॉर आवर फूड, नाउ वी विल बी थैंकिंग द फूड दैट वी ईट एंड द वाटर, द ग्लोरियस वाटर दैट वी ड्रिंक, it will actually accentuate the supplies of the industries and all, प्रोडक्शन बढ़ाएगा। क्योंकि अगर एक आत्मा अगर प्रेयर करती है तो उससे पूरी की पूरी पृथ्वी का कल्याण होता है। तो आप ये सोचो, हम सारे के सारे इतने सारे लोग जब हम अपने खाना को, पानी को माइंडफुली खाते हैं, सिर्फ आप ये सोचना कि जो ग्लास भरा हुआ है पानी का, इवन दैट ग्लास इज मेड अप ऑफ, उसमें लिक्विड होता है, वो वाटर से बना होता है, वो भी मिनरल से बना होता है। वो कहाँ से आता है? अगेन दैट कम्स फ्रॉम द सॉइल ओनली। जो भी आर्टिफिशियल चीजें भी है ना, जो कि मैन मेड चीजें भी है ना, दैट इज ऑल्सो लिंक्ड विद द ग्राउंड। एनीवे इट इज, है ना, सॉइल से लिंक्ड होता सब कुछ। तो आप लोग कभी भी हमेशा माइंडफुली आप लोग खाएंगे ना। एक और चीज है उसका मतलब, वो क्या करते हैं कि ये जॉर्डन के बारे में मैं पढ़ रही थी। वहां पर क्या करते हैं ना कि माइंडफुल ईटिंग के बारे में क्या करते हैं कि whenever they have a like hunger for one thing ना, जैसे मान लीजिए उनको लगता है कि एक चपाती खाना खा सकता हूं मैं, तो वहां पर वो एक नहीं ले सकता। उनके वहां के हर एक जगह के ना फूड के वो होते हैं कुछ स्पिरिचुअलिटी या फिर साइंस के हिसाब से उन लोगों के कुछ डेकोरम या होते हैं, उनका कुछ बिलीफ होते हैं। उनका ये बिलीफ है कि वो हमेशा ना डबल्स में काम करते हैं, लाइक मल्टीपल्स में। अगर उनको एक रोटी की भूख है लेकिन वो एक नहीं लेंगे, उनको दो ही लेनी पड़ेगी। तो वो दो ली, अब दो तो उनके लिए ज्यादा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने दो रोटियां खाई और मुझे एक रोटी और चाहिए, पर मैंने को लेना वो मल्टीपल में ही पड़ेगा। कहीं पर गेस्ट बन के अगर जाते हैं तो मैं दो रोटी लूंगी तो वो चार हो जाएगी। तो मेरे को ये लगेगा कि चार तो मैं नहीं खा सकती, तो मैं वो तीन जो एक्स्ट्रा खाने वाली थी ना, दो खाकर मेरे पेट भर चुका है, लेकिन वो एक्स्ट्रा एक भी मेरा बच जाएगा खाना, क्योंकि मुझे वो मल्टीपल्स में लेना पड़ेगा। सो वी कैन ऑल्सो लाइक थिंक लाइक दैट कि हम लोग ओवर ईटिंग, हमारे में से बहुत सारे लोग ओबेसिटी से डील कर रहे होते हैं। तो कैसे हम लोग माइंडफुल वॉच कर सकते हैं, माइंडफुल ईटिंग कर सकते हैं, इस तरीके से भी वी कैन अप्लाई दिस ऑल्सो, है ना। अपने सर्विंग प्लेट्स को, जापानीज क्या करते हैं, अपने सर्विंग प्लेट्स को छोटा रखते हैं, सो दैट उनका मतलब माइंड को ये लगे कि हाँ हमने बहुत खा लिया। इस तरह से वी कैन डू दैट। तो सो या दिस इज द थिंग। सो आज हम लोग ने क्या करना है, अपने खाने को अपने पेट में डालने से पहले हमने क्या करना है, थैंक्स करना है। उस किसान का थैंक यू करेंगे, जो ग्रोवर है, जो किसान है, जिन्होंने उस खाने को उगाया है। जो वो खाना नहीं उगाते, मुझे लगता है कि पूरे दुनिया में ना किसानों का काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, क्योंकि वो खाने को उगा रहा है। वो ठीक है, उसका वो लाइवलीहुड है, मुझे पता है कि हम लोग सोचेंगे उसका तो लाइवलीहुड है वो, लेकिन वो उगा रहा है तो वो अपने पास तो नहीं रखना। वो अगर अपने लिए उगाए तो अपने पास रख सकता है, अपने यूज कर सकता है, लेकिन वो औरों को भी तो दे रहा है ना, हम लोगों को भी दे रहा है ना। तो इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंट काम हो जाता है। तो जब भी हम लोग खाने का, इवन कोई चिप्स का पैकेट भी अगर आपने खाने का मन किया और आपने खोला ना, हालांकि वी शुड नॉट, बट स्टिल लाइक कभी कभी अगर आपको बिंजिंग करने का मन भी करता है, तो भी whatever you are eating or drinking or anything that you are consuming, you have to say thank you to that, to the grower। अब वो चिप्स भी आलू का चिप्स है मान लीजिए, वो भी तो किसी किसान ने उगाया है ना, तो उसको भी आप लोग ग्रोवर को, उसके बाद जिन्होंने पैकेज किया है उसका, उसको, उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास आया उनकी एनर्जीज भी आ गई, उन सभी को। उसके बाद आपके लोकल मार्केट में आया, वो आपने दुकान से खरीदा, आप घर पे लेकर आए, आपने खाना बनाया या किसी और ने खाना बनाया आपके लिए, तो सभी पूरे की पूरी चेन को हमने थैंक यू बोलते हुए उस खाने को खाना है, ऑब्जर्व करके। जब हम लोगों ने आंखें बंद नहीं करनी, जनरली हम लोग प्रे करते टाइम ना आंखें बंद करते हैं ना, लेकिन हम लोगों ने ऑब्जर्व करके, देखो मगर प्यार से। वो ट्रकों के पीछे लिखा होता है, हमारे यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में तो हमें दिखते हैं वो ट्रक्स के पीछे ना, वो लिखा होता है देखो मगर प्यार से। तो इसी तरह से हम अपने खाने को प्यार से देखकर, ऑब्जर्व करके,
खाने को माइंडफुली खाएंगे, बिकॉज हम लोग 95% डिजीजेस को अपने आप ठीक कर सकते हैं ग्रैटिट्यूड और हम लोग माइंडफुल ईटिंग करके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एफ्लुएंस वाला जो चीजें हैं कि हम लोगों को वेस्ट करना है, ये करना है, वो नहीं। इफ यू आर एफ्लुएंट ऑल्सो, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, हम सभी के पास इतना है, भगवान का शुक्र है कि हम लोगों को इतना दे रखा है यूनिवर्स ने, तो हम लोगों को क्या करना है, वेस्ट नहीं करना है। अपने आप ज्यादा खाना खाना भी वेस्टेज ही है। Whenever you are binging or you are overeating, that is also wasting, because you are like, आप लोग जिनका उन लोगों का हक छीन कर खा रहे हो, ओवर ईट कर रहे हो, स्टॉप इट। हम लोगों को देन एंड देयर हम लोगों को रोकना पड़ेगा अपने आप को कि हम लोग कैसे खाने को माइंडफुली खाएंगे, और पानी को भी माइंडफुली। हम लोगों को पानी जब हमारे पास आ रहा है, तो वो पानी हमारे ग्लास में इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, मिल्क, अगर मान लीजिए आप मिल्क पी रहे हैं, उसमें भी तो पानी है ना। आपको पता है कि हम लोगों को ये, पता नहीं मैं कौन सी कंट्री के बारे में पढ़ रही थी, वहां पर ना वो एक काऊ को हग करने के लिए ना $50 लेते हैं वो, कि आप आइए और काऊ को हग कीजिए। मतलब व्हाट इज दैट, लाइक थैंकिंग द मदर नेचर ना। आप काऊ को थैंक कर रहे हैं क्योंकि उसने आपको दूध दिया है, आप उसका दूध पी रहे हैं। और ह्यूमन मिल्क जो है, हमारा ह्यूमन मिल्क जो होता है, उसका सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी है ना, वो काऊ मिल्क के साथ ज्यादा सिमिलर होता है। तभी कहते हैं ना कि गाय का दूध पीना चाहिए हम लोगों को, देसी गाय का दूध पीना चाहिए, अगर दूध जो पी रहा है उनको भी, बिकॉज द ह्यूमन मिल्क का जो कॉम्पोजिशन है दैट इज वेरी मच सिमिलर, लाइक काफी सिमिलैरिटीज होती हैं उसके काउ मिल्क से। तो ऐसी जगह में वो क्या करते हैं, $50 ले रहे थे वो काउ को, ताकि आप यहाँ पर आओ, हमारे स्टेबल में आओ और काउ को हक कर सकते हो आप। सो दैट इज अ प्रिविलेज, that this is a privilege that you are alive, this is a privilege that you got to eat so much plethora of food in your platter. So identify that, be thankful for that. पानी अगर हम लोग पी रहे हैं तो उनके बारे में सोचिए, जो कि उन्होंने वो ट्रेंचेस खोदे होंगे, वो समंदर का और पानी, रिवर का पानी जो है, किस तरह से आपके पास आ रहा है, प्यूरिफाइड फॉर्म में आ रहा है, आप लोग उसको पी रहे हो। हमारे एक एक बॉडी का सेल जो है उसी पानी से बना हुआ है, पानी का मेमोरी है। हम लोगों ने कितने अच्छे से पढ़ा है कि पानी का मेमोरी, हम सभी को पता है। वो मसारो हाशिमोतो जो जापानीज साइंटिस्ट हैं, उनका जो वो एक्सपेरिमेंट, उन सबके बारे में हमको पता है कि किस तरह से उन्होंने वो राइस पर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था ना, कुक्ड राइस को 3 ग्लासेस ऑफ वाटर में डाला, 3 कंटेनर्स में डाला, और एक को उन्होंने बहुत ज्यादा खराब खराब बोला, बुरी बुरी बातें बोली, दूसरे को उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, उसको एज इट इज रख दिया, और तीसरे में बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी बातें, अपनी ब्लेसिंग्स दी, प्यार दिया, सब कुछ दिया। तो उसके बाद जो प्यार वाला था ना, जो हम लव वाला, इमोशन वाला जो पानी था, इट वाज एग्जैक्टली दैट वे आफ्टर सो मेनी डेज। बहुत सारे दिनों के बाद भी वो वाला जो पानी है, ये वो वाला चावल है, वो खराब नहीं हुआ था, वो एज इट इज था, खिला खिला। लेकिन जिसको उन्होंने ऐसे गंदे अपशब्द बोले थे, वो बिल्कुल इसमें काला काला फंगस और पता नहीं क्या क्या लग गया है ना। और जो प्लेन था जिसको उन्होंने इग्नोर किया था, जिसमें उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था, वो भी सड़ गया था पानी। लेकिन जिसमें उन्होंने हेट्रेड डाली थी ना, वो तो उसका तो बहुत ज्यादा स्मेलिंग, स्टिंकिंग, इस तरह का सेंसेशन वाला हो चुका था वो। तो ये है कि बहुत ज्यादा जरूरी है ये, कि हम लोग जब खाना खाएंगे या पानी पिएंगे, सबसे पहले आप ब्रीद करें, क्योंकि हमारा जो पेट है ना, हमारा जो पेट वाला जो एरिया है, उसको, वो एंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है, हमारा जो गट एरिया, उसको कहते हैं ईएनएस, एंटेरिक नर्वस सिस्टम। सो दैट इज कनेक्टेड विद द एएनएस, आपका जो ब्रेन है, आपका जो ऑटोमेटेड नर्वस सिस्टम होता है, उसके साथ कनेक्टेड होता है वो। तभी आप लोग क्या करोगे, हम लोग अपने उसका अगेन, उसका एएनएस का पार्ट क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। हम लोग ब्रीद करके, माइंडफुल ब्रीद करके, सबसे पहले ब्रीद करेंगे, उसके बाद आंखें खोल के हम लोग खाना पानी जो भी रखा हुआ है उसको ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करके हमने एक टुकड़ा तोड़ा और जब हम अपने मुंह में डाल रहे हैं, बहुत ही माइंडफुली मुंह में चबा चबा कर खाना को खाएंगे। जब चबा चबा कर खाने को खाते हैं, हर एक बाइट में हम, एक मॉर्सल में हम उस खाने के जो फ्लेवर्स है ना, उसको, स्वाद को लेते हुए, रेलिश करते हुए, च्यू करते हुए उसको खाएंगे। क्या होगा, आपके हर एक बाइट के साथ शुक्राना जाएगा आपके पेट में, आपके थॉट्स अच्छे होंगे, एंड आप लोग माइंडफुली खाओगे, उन लोगों के लिए भी बचाओगे जिनके प्लेट में खाना आज नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू विल से थैंक यू टू द फूड,
और उसके बाद हम लोग खाना खा के उठ जाएंगे. सो दिस इज टुडेज प्रैक्टिस कि आज हम लोगों ने माइंडफुली खाना है, बिकॉज फूड इज एक्चुअली गिफ्ट, है ना. और वाटर, इफ देयर इज अ मैजिक ऑन दिस प्लैनेट, इट इज कंटेन्ड इन वाटर. और ये वाटर कैसे आया था हमारे अर्थ में? हमारे अर्थ में जब मीटियोर्स टकराए थे, उनके कारण वो वाटर जो है वो आइस फॉर्म में आया था हमारे प्लैनेट में. ओनली आवर प्लैनेट हैज गॉट द वाटर. हमारे पास ही वाटर है एंड वी आर मेड अप ऑफ वाटर. हमारा ब्रेन पूरी तरह से फ्लूइड होता है. आप अगर अगर ब्रेन को निकाल के ना, ह्यूमन ब्रेन को निकाल के अगर हम ग्लास में डालते हैं, किसी भी कंटेनर में डालते हैं, इट विल टेक इट्स फॉर्म बिकॉज इट्स सो मच जेली लाइक, इट्स सो मच फ्लूइड. जो CSF होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है, वो दैट कंटेन, तभी तो हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस को वो कैच कर लेता है ना. जो हम लोग खाना खा रहे हैं, हम लोग जो भी हमारे इमोशंस के साथ खाना खा रहे हैं, वो सारे का सारा इमोशंस हमारे नेचर को बनाता है, हमारे बीइंग को बनाता है. वी आर ह्यूमन बीइंग, राइट? वी आर स्टिल अंडर मेकिंग, वी आर स्टिल लर्निंग. So today we'll learn that whatever we are eating and drinking, we'll eat and drink it very, very mindfully. हम लोग माइंडफुली खाना खाएंगे, थैंक यू करते हुए खाएंगे. तो आप देखना, आपको कभी भी किसी मेडिसिन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. जरूरत पड़ी तो थोड़े में काम चल जाएगा. सो इट इज इन आवर हैंड्स. हम लोग अपने आप अपनी एनर्जीज को डालते हुए खाएंगे. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट वॉच एनीथिंग नेगेटिव व्हाइल ईटिंग. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पहले मैं क्या करती थी कि हम लोग कुछ चलता रहता था तो खाना खाते थे. मुझे नहीं अच्छा लगता था कभी भी ये सब क्राइम पेट्रोल वगैरह या ये सब, कभी भी मुझे तो बहुत डर लगता था. बट हमारे फैमिली में किसी को पसंद था तो आप सोचो हमारा नेचर ऐसा होता जा रहा था. हर किसी इंसान को हम शक की नजर से देखने लग रहे थे. वो तो ऐसा नहीं है. अगर अंधेरा है, कर्टन के पीछे कुछ छुपा हुआ तो नहीं है. अगर बेड के ऊपर सो रही हूँ तो बेड में क्या पता किसी ने कुछ रख तो नहीं दिया. तो हमारे दिमाग में सस्पिशियन आएगा, आएगा ही आएगा. अगर हम लोग खाना खाते टाइम अच्छी बातों को सोचेंगे, आप खाना खाते टाइम अपना भजन लगा लो या फिर कोई कॉमेडी देख लो ना. वो मैन विद अ प्लान एक बहुत ही अच्छा कॉमेडी सीरीज है, सीरियल है. वो स्टार में आता था पहले, मैन विद अ प्लान. वो आई डोंट नो, उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, एक्टर का नाम क्या था. वो देखते देखते खाना खाओ, मजाक करो, हंसो, हंसते हंसते खाना खा सकते हैं. या मतलब कुछ हंसने का लगा के कुछ अपना हम अपना कुछ अच्छे गाने सुन के खाना खा सकते हैं. लेकिन बैड मूड में या कुछ खराब सुनते हुए हम लोगों ने खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है. ये हम लोगों ने अपनी गांठ बांध लेनी है इस बात का. क्योंकि हमारा गट हेल्थ जितना अच्छा होगा, हमारा बीइंग उतना ज्यादा अच्छा होगा. वी विल बी ग्राउंडेड देन. हम लोग हवा में उछलेंगे नहीं, हम लोग ग्राउंडेड रहेंगे. मदर नेचर को हर एक कण के लिए हम लोग थैंक यू बोलेंगे. तभी हमारा जो बीइंग है वो सुधरेगा, हमारे लाइफ का पर्पस सुधरेगा. हम लोगों को ये वाला जो ग्रेटिट्यूड हम लोग करेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी बेसिक. दिस स्टार्ट्स फ्रॉम द फूड. फूड इज द एसेंस ऑफ आवर लाइफ, राइट? फूड एंड वाटर इज द एसेंस ऑफ आवर लाइफ. सो दिस इज द मोस्ट बेसिक प्रैक्टिस कि आप खाना खाते टाइम और पानी पीते टाइम थैंक यू बोल रहे हो. So I took a lot of time in this chapter only. So yes, so this is very vital actually. मतलब इतना vital है कि आप खाने को खा रहे हो कैसे, कैसे मानसिकता के साथ खा रहे हो, उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. So आज की प्रैक्टिस हमारी यही है कि सबसे पहले तो हम लोग वही काउंट माई ब्लेसिंग्स करेंगे. हम लोगों ने, आधे लोगों ने कर ली होगी. सुबह सुबह ही हम लोग काउंट माई ब्लेसिंग्स करते हैं. 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं हम लोग रोज, फिर उनको हर एक को पढ़ पढ़ के थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हैं. उसके बाद ये हमारी आज की प्रैक्टिस हम लोगों ने बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा डिटेल से समझाने की कोशिश करी है. और एक और चीज हम लोग कर सकते हैं ना, हम लोग एक शेकर रख सकते हैं. वो एक आइडिया है, किसी से मुझे आइडिया मिला था, वो जैसे सॉल्ट का शेकर होता है ना, एक एम्प्टी शेकर रख सकते हैं. एम्प्टी, उसमें कुछ भी नहीं डालना है, हवा डालनी है. उसके अंदर जैसे लोगों के सामने यूं हाथों से अगर मैजिक डस्ट करेंगे ना, तो लोगों को लगेगा पता नहीं क्या जादू टोना कर रहे हैं खाने में. रेस्टोरेंट वगैरह में जाके हम लोग नहीं कर पाते हैं ना ऐसे. So every time you have food, you can sprinkle that magic dust on your plate from that shaker. खाली अगर रहे वो, तो उसको यूं करके हम लोग शेक करके उसके साथ, अरे प्रियंका दिखा रही है, तो यस, सो हम लोग इस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. उसमें थैंक यू का मैजिक डस्ट करके हम अपने खाने को दे सकते हैं, खा सकते हैं. और पानी का तो हम लोग, मैं आपको बताऊंगी लास्ट में कि पानी को कैसे हम लोग ब्लेस करके एफर्मेशन बोल के लें और वो एग्जैक्टली ट्रू हो निकलती है. सो एंड रात की हमारी प्रैक्टिस तो हर रोज की वही है. Just before going to sleep, we'll thank our magic rock for the best thing that happened today. So this concludes our chapter. So now we'll go to the next book. The
the hero. I'll bring the chapter for you. Yes. So हम लोगों ने यहाँ से पढ़ना है John Paul DeJoria. Without wasting much time, I'll like over to Shivani to start reading from here. We'll cover the chapter, then we'll do the explanation. We are learning and we are understanding about intuition here. Intuition को हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पर कि जो intuition जो होती है हमारी वो कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं और कैसे उसका फायदा उठा सकते हैं. Yes, Shivani from Singapore. Good morning. John Paul DeJoria. I hire people mainly off intuition, how I feel about them. If I'm in a business situation and I want to consider doing business with somebody, I go for intuition because the soul feels. Lane Beachley. Just a moment. Here, John Paul DeJoria जो हैं वो बोल रहे हैं कि he looks for the people, like whenever someone comes for the interview ना, तो interviewer identifies कि उसकी मानसिकता कैसी होगी. जैसे मैम जिसे बोल रहे हैं ना कि आजकल जो है ना आपका टैलेंट, आपका जो IQ है, जो इंटेलिजेंट क्वेस्ट है ना, उसकी बजाय जो इंटरव्यूअर होते हैं ना वो इमोशनल क्वेस्ट को देखते हैं कि व्हाट इज योर बीइंग, व्हाट काइंड ऑफ लाइक इफ अ सिचुएशन अराइव्स दैट व्हेन यू हैव टू टेक समथिंग माइंडफुली एंड आप कैसे उस सिचुएशन को डील कर सकते हो. तो इसके कारण पीपल वॉच योर इंटेलिजेंट क्वेस्ट के अलावा दे वॉच योर इमोशनल क्वेस्ट कि हाउ इमोशनल यू आर, हाउ सेंसिबल यू आर एक्चुअली. बिकॉज योर इंटेलिजेंट क्वेस्ट जो है उसको कंपनीज ट्रेन करके, आपको हर एक कंपनी में आप जाते हो पहले आपकी ट्रेनिंग होती है ना, पहले आपकी ट्रेनिंग होती है, आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, उसमें वो आप कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको समझा देते हैं, सिखा देते हैं. लेकिन वो समझने सीखने की क्षमता आप में है कि नहीं, वो आपका जिसे जॉन पॉल डिजोरिया बोल रहे हैं कि हम लोग वो इंट्यूशन से मुझे पता चल जाता था, मेरा इंट्यूशन बता देता था कि ये इंसान इस पर्टिकुलर जॉब के लिए ठीक है कि नहीं, या इस कंपनी के साथ अगर मैं पैक्ट करने वाला हूँ. ये जॉन पॉल डिजोरिया बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है, बहुत ही बड़े. तो उन्होंने जैसे टकीला भी उन्हीं का है, तो हेयर ब्रश वाली कंपनी, हेयर ब्रश इसलिए दिखा रखा है क्योंकि ही इज इनटू हेयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग आल्सो. तो वो अब किसी भी कंपनी के साथ वो पैक्ट करना है कि नहीं बिफोर द डील एंड ऑल, उसको इंट्यूशन आ जाती थी कि मुझे इसके साथ डील करना है कि नहीं करना. सो उसके बाद वो उस पर एक्ट करके ही यूज्ड टू डू द थिंग, ही यूज्ड टू टेक डिसीजंस कि मुझे इसके साथ पार्टनरशिप करनी है कि नहीं, मुझे इस बंदे को एम्प्लॉय करना है कि नहीं. दैट ही यूज्ड टू डू. सो उसके बाद विल स्टडी अबाउट लेन बीचली जो कि बहुत ही, उनके नाम पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं. मुझे लगता है 7 गोल्ड मेडल्स उन्होंने लिए रखे हैं ओलंपिक्स में नहीं, पूरे ऑल टुगेदर गेम्स में. बहुत ही अच्छी सर्फर थी वो. तो हैं ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही अच्छे सर्फर हैं. सो यस शिवानी, रीड दिस. We underestimate the value of our intuition. We fail to trust in our instincts. When I've made some of my biggest mistakes, it's because I haven't listened to my intuition, or I've listened and I've questioned it. It's important that you learn to trust in it. You might have unknowingly shut down your intuition, as many of us have, but you can reawaken your intuitive abilities. It's the very use of our intuition that strengthens it, which is the reason why you hear successful people place so much importance on it. They trusted in their intuition, followed it, and acted on it. And by so doing, their intuitive abilities expanded enormously. The majority of successful people use their intuition with almost every decision they make. It's very important. So Lane Beachley कहती हैं कि जब भी she didn't listen to the intuition that she was having, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हुई. उनको वो मिस्टेक बताती हैं कि जब मैं इंट्यूशन को वो नहीं किया, सॉरी. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इंट्यूशंस को टैप करें. और इंट्यूशंस कब अच्छे आएंगे आपके पास, जब आपका माइंड जो है वो डीक्लटर्ड रहेगा. आप मेडिटेशन करके अपने माइंड को स्थिर कर सकते हैं. शिवानी, जस्ट रीड द नेक्स्ट वन, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन बोथ द थिंग्स. Laird Hamilton. Whenever I have an instinct, I act on it. What's interesting is that as you become conscious of acting on it, you become better at it.
It's actually a life skill that you can get better at. Outside of just trusting in your intuition and following it more often, there's an easy way to increase your intuitive abilities. Ask questions. When you ask a question, you receive the answer through your intuition. You can start with easy questions where you know you will see the confirmation of the answer quickly, like, what time will a person arrive? Or, what color clothing is a particular person going to be wearing today? When your phone rings and it's not in front of you, ask, who's calling me? Sometimes your own mind will try and give you the answer. But if you can keep your own mind still when you ask the question, so your mind is in receiving mode, with practice, the name of the person calling will flash into your mind. Asking a question or for a solution uses the very same process as when the answer is transmitted to you, but in reverse. Your question is transmitted outward to the universal mind. Perhaps you will now understand how it is that when entrepreneurs ask for the perfect idea that the world needs at that time, they receive an idea that ends up being exactly what the world needs at that time. As you improve your intuition, you'll start to get more and more intuitive urges and inspirations to do particular things. And when they prove to be correct, like many successful people, you will trust in your intuition and know it to be one of your most powerful abilities. Yes. Thank you so much, Shivani. Thank you for reading so Thank you. beautifully. So yes, so let's listen what Mr. Laird Hamilton wants to say. So ये कहते हैं आपने देखा होगा whenever an entrepreneur is wants to start a business ना, he looks into the fact कि अपने intuition पे काम करता है वो. जैसे मान लीजिए वो कहीं पर गया and he watches very closely कि what the world needs now. क्या चाहिए. अब जैसे मान लीजिए ये जो ऑनलाइन शॉपिंग का पोर्टल्स जब आने शुरू हुए हैं, ये बाहर विदेशों में बहुत पहले से था, लेकिन इंडिया में नाउ दिस इज अ रेगुलर थिंग. हम लोग मार्केट में जाने के बजाय हम लोग घर पे बैठे कोजी एरिया में बैठ के अपने कंबल के अंदर बैठ के हम लोग ऑर्डर करते हैं, वो हमारे पास आ जाता है. लेकिन यू नो द टाइम when this online shopping was not that much not a regular thing here in this society, हमारे इंडिया में हम लोग जब जाते थे ना मार्केट में, हम लोग सोचते थे यार ऐसा कभी हो जाए तो मतलब कितना अच्छा हो कि हमारे जो सामान जो है हमें घर बैठे बैठे मिल जाए, ऑनलाइन डिलीवरी हो जाना. आजकल तो जो केमिस्ट हैं ये सब भी घर में हम लोग हमारी दवाइयां भेज देते हैं, जो भी हमारी जरूरत की चीजें होती हैं वो आ जाती है हमारे पास. लेकिन पहले ऐसा नहीं था. यू हैड टू गो टू द प्लेस टू गेट योर थिंग्स. पहले तो ऐसा ही था. तो क्या किया ये एंटरप्रेन्योर्स ने, दे सॉ द गैप वेयर दे कैन गेट अ बिजनेस. उन्होंने वो गैप देखा कि यहाँ पर काम कर सकता हूँ, मैं इस चीज पे काम कर सकता हूँ, ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है ना. तो उन्होंने ये ऑनलाइन शॉपिंग का जो है ये डेवलप किया. ऑनलाइन शॉपिंग से क्या होता है, उनका वो इंट्यूशन उनके दिमाग में आया था, चाहे वो अमेजोन के वो जेफ बेजोस हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखा कि कहाँ पर व्हाट इज द डिमांड राइट नाउ. उन्होंने अपने इंट्यूशन से काम किया, अपने आप से क्वेश्चन पूछे. ऑलवेज मैम हमेशा बोलते हैं कि आस्क क्वेश्चंस. यूनिवर्स लव्स टू आंसर योर क्वेश्चंस. यू कैन आस्क लॉफ्टी क्वेश्चंस टू देम. एनीथिंग व्हाट यू वांट टू वेयर टुडे. अब पहले मुझे भी ऐसा होता था, मैं कभी जाना हो ना, ज्यादातर लेडीज का हमारा यही हाल होता है, हम लोग सब कुछ निकाल के रख देंगे, क्या पहनूं, मतलब समझ में नहीं आता ये पहनूं. पहले तो आई वॉज सच अ कंफ्यूज सोल ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती थी. मेरी जैसे कि मान लीजिए कोई फंक्शन हो, जैसे मेरी मम्मी के पास ना बहुत साड़ीज थी, तो माय फ्रेंड्स वुड कम एंड टेक साड़ीज फ्रॉम मम्मा कि आप दे दीजिए आंटी हम पहनेंगे. तो ठीक है, उन्होंने वो देती थी. बट मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि आपने जो उसको साड़ी दी है ना वो ज्यादा अच्छी है, मेरी साड़ी अच्छी नहीं है. तो ये चीजें रहती थी हमेशा, कि अभी भी कंफ्यूज रहती थी मैं बहुत ज्यादा कि ये लूं वो लूं, ये पहनूं वो पहनूं, ये सब. लेकिन नाउ व्हाट आई डू इज, वी हैव स्टडीड इन द पावर बुक. रॉन्डा बर्न ने बहुत क्लियरली बोला था ये कि आई आस्क द यूनिवर्स कि व्हाट शुड आई वेयर टुडे.
ठीक है, आई हैव दिस थिंग टू डू, व्हाट शुड आई वेयर टुडे। सो ऑटोमेटिकली पता ही नहीं कहाँ से उसका हाथ उसी पर्टिकुलर स्कर्ट की तरफ जाएगा, उसको वो उठाएंगी, उसको पहन लेगी, उनको सोचना ही नहीं पड़ता, क्योंकि शी ऑलवेज रिमेन्स इन दैट फ्रीक्वेंसी and she keeps on asking lofty questions to the universe, what should I wear today? तो यूनिवर्स के पास से अपने आप यूनिवर्स विल टेक यू टू दैट पर्टिकुलर ड्रेस दैट यू शुड बी वेयरिंग. So this is the thing, this is the significance of asking questions. So the same way, whenever someone like यहाँ पर तो लैड हैमिल्टन बता रहे हैं, he's a model and a surfer too, तो वो बता रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ के उन्होंने अपने जो पॉसिबिलिटीज हैं, अपने जो फ्लाइट है उसको और भी इंक्रीज कर लिया है. तो आप क्या, कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे मान लीजिए आप जब माइंडफुल रहोगे ना, इसके लिए अपने इंट्यूशन को टैप करने के लिए यू हैव टू बी वेरी मच माइंडफुल ऑल द टाइम. और वो माइंडफुल कैसे रहेंगे? वो मैम कहती है ना 3, 5, 10, 15, 3, 5, 10, 15 मिनट्स की हम लोगों को हमेशा रोज मेडिटेशन करनी चाहिए. कोशिश करें कि 15 मिनट का करें, नहीं हो पा रहा है तो 3 मिनट का मिनिमम करें, जरूर करें. सुबह उठते ही और रात को भी. मुझे तो लगता है कि रात को भी मैजिक रॉक के बाद, एक्चुअली आई डू माई मैजिक रॉक प्रैक्टिस जस्ट लाइक द वे वी मेडिटेट. मैं बैठ के बिल्कुल मेडिटेटिंग पोजीशन में अपने हाथ में उसको लेके स्टोन को फिर करती हूँ. सो दैट इज अगेन अ टाइप ऑफ मेडिटेशन व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन दैट थिंग, व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन द थिंग दैट हैपेंड विद इन, लाइक आज के दिन में जो जो अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, वी आर फोकसिंग ऑन दैट. सो दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन. Whenever you are focusing on something, just suppose आपका हस्बैंड साथ में खराटे भी ले रहा है ना, आप खराटे के ऊपर फोकस करके भी आप अपना मेडिटेशन कर सकते हो. यू हैव टू बी दैट माइंडफुल. यू नीड टू हैव दैट थिंग कि एक चीज पे आपने फोकस करना है. अगर हमारे माइंड में बहुत सारे विचार आते जा रहे हैं, आने दो, कोई बात नहीं. देयर इज नो स्टॉपिंग गेट, नो एंट्री नहीं है किसी भी चीज की. दिमाग के वहां पर हमारा इम्परमिएबल होता है, हम लोग वहां पर जा आ सकते हैं. बैठे बैठे यहाँ पर सरिता जी ने हम लोगों को इतना सी व्यू दिखा दिया, इतना अच्छा व्यू दिखा दिया, लेकिन वो व्यू जाके हमारे माइंड में बनी है ना उसकी पिक्चर पहले. तो हमारे माइंड में हमेशा वेलकम करता है, चाहे वो पॉजिटिव थॉट्स हो चाहे नेगेटिव थॉट्स हो. कई लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन कैसे करूं, मेरे को तो आता नहीं है मेडिटेशन करना. उनके लिए सिर्फ यही है कि आपने अपने आप से डेलिबरेटली कोशिश नहीं करनी है कि नेगेटिव थॉट्स ना आए. सो हम लोगों ने ये नहीं सोचना है कि नेगेटिव थॉट्स ना आए. अगर आ रहे हैं तो आने दो. अगर हमारा हार्ट उस टाइम काम कर रहा है, हम लोग जब मेडिटेट कर रहे हैं, हमारा हार्ट काम कर रहा है ना, कर रहा, उसका काम धड़कना है, वो धड़क रहा है. हमारी किडनीज का काम फिल्टर करना है, वो फिल्टर कर रहा है. हमारे पेट में डिजेशन का प्रोसेस चल रहा है. हमारे बाकी सारे ऑर्गन्स, लंग्स हमारे कंटिन्यूअसली वो एक्सचेंज कर रहे हैं ना. तो हमारे दिमाग का काम तो सोचना है, वो करेगा. Let the thoughts come into your mind, but you need to focus on your breath. जिस भी आप मान लीजिए कोई म्यूजिक चलाकर, आप मान लीजिए जंगल का म्यूजिक चला के आप फोकस कर रहे हो, और जंगल का म्यूजिक चला के जब आप फोकस कर रहे हो, तब आप मेडिटेट कर रहे हो, तो फोकस ऑन दैट, कीप योर फोकस इन दिस. और उसके बाद आप अपने आप को, जब आप अपने माइंड को क्लियर करोगे, क्लटर्स फ्री करोगे, that time you will be able to tap into the thing. You will be getting the questions, you will be getting all the answers of your questions from the universe, because that time you will be aligned to the universal forces. जो यूनिवर्सल फोर्सेस के साथ हम लोग तभी अलाइन रह पाएंगे when our mind, our heart, our gut, ये तीनों की तीनों चीजें जब हमारी अलाइंड होंगी, तब हम लोग यूनिवर्स की जो पावर्स हैं, और वो यूनिवर्स की पावर्स हमारे अंदर ही हैं, हमारे इंट्यूशन में है, उसको हम लोग टैप कर पाएंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग मेडिटेट करें, हम लोग कोशिश करें. मेडिटेशन इज नॉट एनी हाइप थिंग. चाहे वो आपको पता है स्टीव जॉब जैसे इंडिया में आके उन्होंने करा था, जूलिया रॉबर्ट्स भी मतलब इंडिया में आई थी, उन्होंने अपने आप को यहाँ पर आके इवॉल्व करा, हिमालयाज में गई, बेंटन मसारो भी इंडिया में आए थे, सारे के सारे. क्योंकि यहाँ पर पता है क्या, हम लोगों को लगता है कि यार हमारे इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, डेमोग्राफिकली हम लोग इतने ज्यादा पॉपुलेटेड है, हम लोग, हमारे यहाँ पर मार्केट है, इसलिए लोग आ रहे हैं. लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमारे इंडिया में ही क्यों इतनी बड़ी पॉपुलेशन है? वो इसलिए है क्योंकि यहाँ की मिट्टी ऐसी है, यहाँ की आबो हवा ऐसी है,
यहाँ का वातावरण ऐसा है कि हम लोग हमेशा फ्लरिश करें। हमारे यहाँ पे ग्रीनरी इतनी ज्यादा है, हमारा कल्चर ऐसा है कि इसमें कंपनीज को भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है यहाँ पर आने के लिए, यहाँ पर आने के आकर अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए। एंड यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी के हम लोग यहाँ पर आके स्पिरिचुअलिटी के भी और ज्यादा नजदीक जाते हैं, बिकॉज वी आर लिविंग इन दिस डिवाइन कंट्री। मैं ये कहती हूँ कि दुनिया का हर एक कोना खूबसूरत है, हर एक जगह वो खूबसूरत है जिसको आप खूबसूरत समझते हो। लेकिन इंडिया की हमारी जो पॉपुलेशन है या हमारी जो मान्यताएं हैं, उसका सिग्निफिकेंस ये है क्योंकि वो बहुत ही हम लोग बहुत फॉर्चुनेटली हम लोग ऐसी जगह पे प्लेस्ड है जहां पर इतने सारे ऋतुएं हैं, इतने सारे ऋतुएं जो है अपने टाइम के हिसाब से आती हैं, हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है। आप साइबेरिया में अगर आप चले जाओ, देयर यू कैन नॉट गेट अ ग्रीन थिंग, यू कैन नॉट गेट दैट, बिकॉज वो सारा का सारा आपका आइस से कवर्ड है। हमारे यहाँ पर ना तो गर्मी इतनी ज्यादा है ना तो सर्दी इतनी ज्यादा है, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट रहता है हमारे यहाँ पर जो कि पॉपुलेशन को डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी होता है। और इसी कारण से हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से रह पा रहे हैं, हमारा कल्चर डेवलप हो पाया इसलिए। सो गो टू द नेचर, अपने आप को ग्राउंड करें, अपने आप को खुद से कनेक्ट करें। खुद से कनेक्ट करने के लिए वी हैव टू मेडिटेट एटलीस्ट फॉर 3 मिनट्स, नहीं तो 15 मिनट्स, जब भी आपको टाइम मिलेगा। धीरे धीरे करके एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस एंड यू विल बी एबल टू टैप इनटू द इंट्यूशन ऑफ आवर माइंड कि मुझे आज क्या करना चाहिए, मुझे ये हो रहा है, मुझे खाने में भी, मुझे पेट में मान लीजिए दर्द हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। मैंने सुबह सेशन में पढ़ा था कि मुझे ये करना चाहिए कि खाने को मैं थैंक यू बोल के खाऊंगी, मैं पानी को थैंक यू बोल के पीऊंगी, तो मुझे ये करना चाहिए। अगर आप माइंडफुल रहते हो तो आपको मॉर्निंग सेशन में भी जितनी बातें आप सुनते हो समझते हो वो आपको याद आएंगी। नहीं तो क्या होगा, वही 7:30 बजे के बाद हमारे लाइफ के इधर इधर अटरम शटरम में हम लोग पड़ जाएंगे, हम लोग भूल जाएंगे। Just because of that, we should meditate every day, every single day, just like breathing. We have to make meditation our breathing. We have to make gratitude our breathing. That time, like जितना सांस, हर सांस के साथ शुक्राना, वो यही है कि we have to thank our mere existence. We have to come to the basics and thank the things. So इस तरह से हम लोग करके meditate करके, अब मान लीजिए, अब आपकी मान लीजिए आपने पानी के अंदर सॉल्ट को घोला, सॉल्ट मान लीजिए एक आपकी जो नेगेटिव विचारधारा है ना वो है आपके दिमाग में है, तो आप उस सॉल्ट का कंसंट्रेशन करने के लिए क्या करोगे, वो तो डिजोल्व हो चुका है, उसको तो यूं यूं करके रिमूव नहीं कर सकते हैं ना। व्हाट विल डू, वी विल पोर इनटू वाटर इनटू इट, है ना, विल डाइल्यूट इट, विल ट्राई टू डाइल्यूट इट मोर। ग्लास के अंदर रखा है, वो नमक इतना था, तो पानी हमने इतना डाला, तो पानी में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ ना। उसके बाद मैंने क्या किया, उस ग्लास के पानी को सॉल्ट के समेत मैंने एक बाल्टी में डाल दिया, फिर बाल्टी में उसकी कॉन्सेंट्रेशन अगेन ज्यादा थी, लेकिन मैंने बाल्टी को फिर से पूरा पानी में भर दिया, तो सॉल्ट की कंसेंट्रेशन वहां पर कम हो गई। अब मैंने वो बाल्टी को उठाई और मैंने बाल्टी को जाके अपने पूल में डाल दिया, पूल में डाल दिया, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन उतनी थी, लेकिन अब पानी से इतना डाइल्यूटेड हो गया है कि वो अब ना के बराबर रह गया है। सो द सेम वे we should meditate in order to stop those negative feelings coming into our mind. Those will come and settle down, and eventually a day will come जब आपके नेगेटिव पर्सपेक्टिव जो आपके लाइफ में आएगा नहीं। मेडिटेट करके हम लोगों ने अपनी वो इंट्यूशन, उस कैपेबिलिटी को और हम लोगों ने इनहैंस करना है, कोशिशें करनी है। पहले हम लोग ऑर्गेनिकली कोशिश करेंगे, नहीं पाया तो हम लोग वापस से उसको रोज 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 करते करते, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हमने पढ़ा हुआ है ना ये। सो प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट इवन इन द मेडिटेशन ऑल्सो। Perfection is just a mirage. I am not talking, like I never talk about the perfection thing. Perfection is a mirage, but we can accentuate the good things into our life. We can tap into the intuitions. We can also get good hunches कि मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो मैं अगर कॉफी शॉप में जाऊंगी तो मुझे दिखाई देगा कि ये मेरा बिजनेस एरिया हो सकता है, मैं इस चीज पर काम कर सकता हूँ, मैं ये चीज डेवलप कर सकता हूँ। ऐसे ही लोगों में जो बिलियनर्स है ना, वो अपना नया बिजनेस जब चालू करते हैं वो इसी तरह से करते हैं। मार्क जकरबर्ग ने कैसे किया था फेसबुक शुरू, उन्होंने भी तो ऐसे ही किया था। वो अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात करना चाहते थे, लेकिन कोई ऐसा था नहीं कि वो फ्रेंड से बात कर सके, तब उन्होंने सोचा कि व्हाई नॉट यूज इंटरनेट फॉर दिस।
तब तो उन लोगों ने मिलकर वो डेवलप किया था, और उसके बाद मतलब उन्होंने, ही वॉज नॉट द प्राइमरी डेवलपर एक्चुअली, बट उन्होंने डेवलप करके तभी तो वो इतना बड़ा फेसबुक, और आज व्हाट्सएप भी फेसबुक ने ले लिया है, तो इतना सारा फ्रेटर्निटी है पूरा का पूरा कैसे हुआ? बिकॉज दे लुक इनटू द गैप एंड दे फॉलो देयर इंस्टिंक्ट. Following our instinct gives us the things for achievement. So this is the prime thing. So लेन बिचली का ये लेड हैमिल्टन का ये हमारा हो गया, और लेन बिचली का थोड़ा सा मैं अपने थ्रोट के कारण नहीं बोल पा रही थी. सो उन्होंने क्या कहा था कि जब भी उन्होंने अपनी लाइफ में अपने इंस्टिंक्ट को, अपने इंट्यूशन के पावर को उन्होंने नहीं किया था ना, टैपिंग नहीं कर पाए थे, तब जाके उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई थी. लेकिन जब उन्होंने मेडिटेट करके अपने आप को यूनिवर्सल पावर के साथ इन लाइन, तब वो हर एक इंट्यूशन को अपना फॉलो कर पाए और फॉलो करके उनका लाभ उठा पाए. तो हमारे लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम लोग अपने इंट्यूटिव कैपेबिलिटीज को और भी ज्यादा इनहैंस करें. हम लोगों के दिमाग में ऐसे मतलब धुआंधार, जैसे कि ना यूं ऐसे 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 करके कि गुड जो इंट्यूशंस है ना वो आते रहे. हम लोग अपनी एबिलिटीज को और भी, कैपेबिलिटीज को और भी इनहैंस करते पाए. एवरी डे वी शुड गेट बेटर इनटू व्हाटएवर यू आर डूइंग. आपने आज राजमा चावल बनाए, कल आपको इंट्यूशन आएगा कि मैं इसको और कैसे और अच्छा बना सकती हूँ, तो वैसे आप अच्छा बनाओगे. आज आपका डोसा मान लीजिए तवे पे चिपक रहा है, कल आपको इंट्यूशन आएगा कि मैं ऐसे करके देखती हूँ ना तो कैसे होगा. सो वी हैव टू फ्लड आवर माइंड विद दोस पॉजिटिव थिंग्स. आप एक वीडियो देखोगे आप रिसर्च करोगे कैसे करना है, तो वो प्रैक्टिस करते करते होगा ना. एक दिन में तो कोई भी शेर नहीं बन जाता है. तो practice will make us perfect even in meditation also. And once we get into the meditative thing, then intuitions will come, like we'll welcome the intuitions and we'll tap into the innate power of abilities. So this is all from today from my desk. Thank you so much everyone for being the best listeners of the whole universe. Thank you to Deepti ma'am for giving me this opportunity to talk to you today. And thanks to Priyanka, जिन्होंने voluntarily आकर उन्होंने बोला कि प्रिया आज मैं छुट्टी पे हूँ तो आज मुझे को होस्ट बना देना. सो आई वाज लुकिंग कि मैं को होस्टिंग के लिए आज बिट्टी जी भी पढ़ेंगी, तो मैं को होस्टिंग के लिए किसको बोलूंगी. तो तभी आई गॉट माई आई आस्क्ड दिस थिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, एंड आई दैट मोमेंट प्रियंका का मैंने मैसेज देखा ग्रुप में ना, उसने वो डाल देती है, वो जो ज्वाइनिंग वाला सेशन का गुड मॉर्निंग वाला डाल देती है, बहुत बार डाल देती है. तो वो डाला उसने, तभी मैंने सोचा, मैंने कहा यहाँ तो हो गया, मैंने कहा ये वाला काम तो हो गया, आज को होस्टिंग के लिए क्या. तभी प्रियंका ने मुझे मैसेज किया कि आई एम ऑन ऑफ टुडे, तो मुझे पोस्ट बना देना, मैं देख लूंगी. सो थैंक यू सो मच प्रियंका फॉर दिस, एंड थैंक्स टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू मी, फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम. आई नो आई गॉट overstretched today again. I'll watch on this, but yes, thank you from the deep core of my heart. So thank you We are everyone. glad to Thank listen you, to you, ma'am. Priya, Thank you so actually. much, ma'am. Thank you, Priya. We You are were glad to listen amazing. to you. Really, you were Amazing Thank you so performance. amazing. much. Priya, you, you're Priya. too Thank you so good. much. You described each and everything so nicely and so intelligently that it all went in our cells. Really. That's our motive. No, ma'am, that's our motive. Thank you so much. Thank you for your kind words. You're always Your, blissful for your me. examples you are are amazing. 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 Your Your examples are examples are very so amazing. diluted. Yes, Thank you, Priya, thank your you so much. examples. Thank you, everyone. Priya, your Soumya, examples are very diluted, very Huh. diluted. Very. thank you so much. We just have to follow these things also, ना. हम लोगों को सुनना अच्छा लगता है, मुझे भी मैम जब बोलती है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनना. But when once we go back into the reality, ना, this is a euphoric area for all of us. Like for me, it is a euphoria to be here, if euphoria to be in front of you, euphoria to talk to you, euphoria to feel the air within me. But when I go to the reality, whether I'm following this or not, that will happen if we keep we are mindful. We practice meditation and we are mindful. आप mindful रहोगे ना, तो ये चीजें अपने आप दिमाग में आती जाएंगी कि ये हो रहा है ना मेरे साथ, तो मुझे क्या करना है, वो हो रहा है ना मेरे साथ, मेरे से क्या करना है. We have to be mindful for that. Yes, Soumya, बोलो. Hi, Dee. Hi, everyone. Good morning. Good The morning. wonderful session. Thank you so much. So I just wanted to
say something and then do a small sharing as well. So before I entered into this practice, I used to listen to Lord. I was trying to find a guru, and of course, guru is now Deepti ma'am. So I was in search of guru, and I was going through a lot of spiritual teachers. And at that time, in few months, I used to listen to Sadhguru, and in one of his talk, he had said, "Ki, you are eating a banana, and a banana becomes you." I was like, okay, makes like scientifically, okay, makes sense. But then today when Dee is explaining, it actually makes sense. Like, you eat a banana, and a banana is also has a DNA, it also has a genetics, right? It is coming from 5 elements, okay, and it has its own DNA, and it enters into your body, and then it undergoes the breakdown. All the amino acids and everything gets realigned, and they make you. So in the end, that one banana that was in the nature being a banana is now a Saumya, right? So how mind blowing it is that we as a humans, we are not ready to give control or anything to anybody, right? Like, we don't want anybody to go over us and take control of us. But that banana, that water, that rice ka dana, they are easily and so effortlessly sacrificing their life to become something else. So I used to do every day this GTSC, yeah, right? I used to do every day, and every time I'm looking at the plate of food and I'm thanking, and there are literal tears in my eyes that the food went through so much of transformation. It went through heat, it went through salt, it went through all the cells went through so much of transformation to just make it palatable to us, to give us strength and vitality. I used to literally cry every time I'm having food these days. And today it's even more so profound with these explanation ki, oh my God, like kya jadoo hai, right? So, and and another dimension to this is the fact that whenever I have affirmed anything with the food, right? Like I keep changing the affirmation. So I've added couple of things to the GTSC practice. I've added my utensils, my kitchen, and then I've added my body. I've thanked my body for accepting it with joy and happiness. And then I've also thanked the food itself. And I say, thank you for sacrificing your life so that you could provide me the nutrients, the protection, the immunity, love, joy, laughter, happiness, a relation, and whatever I add next, like if it is relation, or if it is a career, if it is a job, if it is a successful meeting, or if it, whatever tag I've used on that day, that moment, like for lunch, if I've used it, before the dinner is up, whatever I've added in the last comes true. Like if I've said career in that day, in lunch, before dinner, I have a LinkedIn message, or I have a call from a client saying, are you available for a project? Like that. So literally, it is becoming me. Like whatever I'm putting in happens with that, me it is also. becoming me. Every time it happens with me also. Like morning में ना, when we take our morning drink ना, I Yeah. keep the glass on my, like सब हमेशा सामने रहता है, and I affirm, जैसे कि मैं आपका एरिया वो है, तो my area is the share market thing. So मैं वो बता भी रही थी, पता नहीं उस दिन किसी को बोल भी रही थी मैं, every time it happens, I'll affirm the thing into the like glass of water that I'm taking, the lemon water that I take in the morning. उसको मैंने जो बोला, जैसे बोला, मेरा काम वैसे ही बन जाता है. Yes. मेरा एक पर्टिकुलर स्टॉक है जो बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा था, तो उस दिन मैंने बोला, मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला था कि ना इसको ना प्यार देना पड़ेगा, थोड़ा प्यार मांग रहा है. तो मैंने सुबह जब पानी पिया ना, तो पानी के साथ like I affirmed it that that particular stock is flying. It is almost like it is 4% up, and it was actually 4% up out of the no blue. You know, so this happens actually whenever you are affirming something, like while having food or drink. फूड के साथ बहुत ज्यादा नहीं, मैं पानी के साथ बहुत ज्यादा करती हूँ एक्सपेरिमेंट इस तरह का. सो वेन एवर यू आर स्टार्टिंग योर डे और एनी टाइम ड्यूरिंग द, जैसे सौम्या ने भी बताया कि वाइल एंड लंच ऑल्सो या ब्रेकफास्ट जब भी आप करते हो, आप अफर्म करके खाओ उस चीज को, माइंडफुल होके खाओ, आपका वो चीज जरूर पूरा होगा. But you have to be in that frequency. You Yeah. have to come in ground with that. जैसे सौम्या ने बोला कि वो रियलाइज कर रही हैं
कि वो बनाना किस तरह से अपना स्ट्रक्चर चेंज करके, अपना फॉर्म चेंज करके सौम्या बन चुका है, उसी तरह से हम लोगों ने उतने माइंडफुली सोचकर हम लोग जब करेंगे, और हम लोग जब अपने आप को हायर फ्रिक्वेंसी में रखने की कोशिश करेंगे, तब हमारे पास वो सारी कैपेबिलिटीज अपने मुट्ठी में आ जाएंगी कि हम किस तरह से अपनी लाइफ को अपने आप चलाएंगे. We do not have to seek blessings from outside because we ourselves are blessing. Actually, this is the thing. I also do this, and मैंने बोला था ना बीच में, I was like running short of time, तो इसलिए मैंने बोला था लास्ट में शेयर करूंगी. सौम्या, actually this was I about to share, and you shared that your thing also. So Oh my same thing. Thank you so much for doing this. Yes, please carry on. Yeah, no, that's all I wanted to say. Ki I actually want to also thank Shamji because the one day he was drinking water and he was on unmute and he was saying, I am energetic. Usse pehle I was not so sold on this idea. I was not sold on this idea, and he was saying that, and he had done his sharings. Now he's quite energetic now and all. I was like, okay, let me try. And I'm telling you, I'm connected to Foodie because I'm a food technologist, right? So मुझको food से बहुत ज्यादा प्यार है. तो पानी of course is everything, but food से बहुत लगाव है. तो I do it lot on food, a lot on food. मैं खाना पकाते रहती हूँ तो मैं I'm like literally to tomatoes. I'm like, dude, thank you so much for sacrificing your life and making my food tasty. Thank you so much. It is so, say, when you see that life They in that sacrifice person. us, na? Whenever we are eating a grain also, अगर हम Yeah. आटा रोटी खाते हैं ना, so it is made up of so many grains, so that wheat का grain has got the capability to reproduce. Again, हम उस grain को अगर पानी में डालते हैं, उससे पौधा Yeah. होगा, लेकिन उसने पौधा नहीं उगाया, वो हमारे वो शरीर में गया, हम उसको वो Yeah. बने हैं. So every grain, हम लोग कहते हैं कि नॉन वेज में वो पावर होती है, नॉन वेज खाना गलत है, ये सब कुछ. Actually वो wheat grain जो है, वो every seed that you are consuming, be it a badam, be it a rice grain or anything and Has everything has got the nutrients. capability to reproduce itself, है ना? Yeah. तो हम लोग वो हमारे बॉडी में अपने आप को सरेंडर करके आ रहा है, तो हम लोगों को ये सिखाने के लिए तो आ रहा है कि we have Yeah. to use our powers. हम लोगों का जो पर्पस है दुनिया में, ह्यूमन बीइंग बन पाना is a blessing, और ह्यूमन बीइंग बनकर हम लोग क्या कर रहे हैं वो we have to think. And yeah, thank you so much. Thank you so Uh, much. Thank you. And yeah, thanks, everything thanks. happens for a reason, right? So आपके प्लेट में वो दाना है, तो it has come because it wanted to serve that purpose. So Right, we just have absolutely. to salute that. Yes, Thank you so much for Soumya, the for your platform. delightful Thank you so much. instinct. Thank you so much for And beautiful example. No, thank you, thank you, thank you, beautiful, thank beautiful. you. So सरोज जी, आप बोलना चाहते हैं? Thank you. हाँ जी, बोलिए सरोज Thank मैम. you everyone Over and to you. thank you Priya for the beautiful session. देखो सुनना हमेशा बहुत अच्छा लगता है, और हमें बड़े आपको मन देखना से भी बहुत करते अच्छा हो। लगता है. मैं तो Yes. बाबा जी बनी रहूंगी पूरी सर्दी, मेरे को देखना हमेशा कोई बात ऐसे। नहीं, हम बाबा को ही देख लेते हैं. आपकी कैप वाली फोटो या Thank you, ठीक है. Priya, for the lovely session. Really, thanks. Thank you so हाँ, much. हाँ जी, ये हूँ मैं. बोलिए. वो मैं जो सौम्या ने बोला ना, से सेम चीज कुछ दिन पहले डॉक्टर सुनैना ने कुछ शेयर किया था ना, कि बीइंग इन द मोमेंट है ना, और खासकर खाना खाते हुए तो मैं बस खाने में घुसी होती हूँ। तो मेरे लिए कुछ नहीं छोले है. भटूरे भी खाओ ना तो भी be in the moment. आइसक्रीम भी खा रहे हो Be तो in भी the be in the moment. moment. हाँ, Enjoy वो फ्लेवर सारा का सारा आइसक्रीम का या हाँ, किसी भी चीज का. बिल्कुल. Enjoy. हाँ, एक्चुअली सौम्या ने बस मेरे मन की बात बोल दी कि जो वो फील करती है, सेम थिंग इज हियर, कि खाने को पहले हम लोग पहले खाना खा रहे हैं प्लेट में लेके, उधर न्यूज़पेपर देख रहे हैं. मेरे तो ज्यादातर ये है कि कुछ ना कुछ पढ़ने लग जाती थी या फोन को स्क्रॉल करने लग जाती थी ना, तो मतलब वो खाने में वो चीजें वो नहीं थी. अभी क्या है कि मतलब प्लेट में मैं एक ही, एक्चुअली मैं पूरा दिन में अच्छे से खाना सिर्फ दोपहर को ही खाती हूँ, इवनिंग में या नाइट में नहीं. तो वो टाइम होता है ना मेरे लिए, वो इतना प्रेशियस होता है कि मैं ये प्रैक्टिसेस में आने के बाद हुआ है ऐसा ना, कि हर चीज को खाने को देख के, और मुझे खाने का टेस्ट इतना बढ़ गया है, शायद वो मुझे ज्यादा नरिश कर रहा है फूड ना, तो वो चीज वो चीज है
कि आप जब खाने को इतना थैंक यू बोलते हो, इतना बोलते हो, तो वो खाना सच में मतलब मुझे मैं बता नहीं सकती कि मेरी वो प्लेट उस टाइम मुझे सेलिब्रेशन लग रही होती है। तो दैट इज माय माय शेयरिंग। सदगुरु ने जो सौम्या ने बोला, ये सदगुरु की बात मैंने भी सुनी थी, और उसी दिन से मैं अप्लाई करने लगी हूँ कि कितना प्रेशियस है ये चीज जो मेरी प्लेट में है और हाउ इट कम टू मी। और मैं एक्चुअली उन लोगों को भी थैंक्स बोलती हूँ जिनकी वजह से मैं इस खाने को कमा पा रही हूँ। धरती माँ को भी थैंक यू बोलती बिल्कुल हूँ कि जो जिसने ये दिया है मुझे खाना। अपनी यूनिवर्स को भी बोलती हूँ कि जिसकी जो खाना खाने के लिए मैं एबिलिटी है कि मैं इसको खा पा रही हूँ। तो ये सच में ये सेशन इंक्लूडेड ये है कि बहुत थैंक यू, थैंक यू। और आज जो थैंक तूने यू सो बोला मच ना वो मैम, बहुत सही बिल्कुल था। बिल्कुल। आप थैंक हम यू। लोगों ने ये सब सीखा। मैं भी तो बता रही थी ना कि अपने ताऊ जी को मैं शुरू से ही देखती थी, वो खाने को ब्लेस मतलब खाने के लिए शुक्राना करके ही खाते थे, है ना। तो हम लोग तो, हाँ। मैं तो तब सीखी नहीं थी, स्कूल में भी सिखाया गया था, मॉरल साइंस में सिखाया गया था स्कूल में कि वो प्रेयर्स वगैरह होती थी कि भाई हम लोग खाने के पहले प्रेयर वगैरह करते थे, वो होता था। लेकिन वो हम लोगों ने अपने जस्ट एब्जॉर्ब नहीं किया ना उस चीज को। एब्जॉर्ब आफ्टर नहीं किया। कमिंग टू द स्कूल में तो सेशन, करवाते थे, स्कूल में तो हमें बिठाते थे जब वो लंच टाइम होता रोबोट था ना, रोबोट की जमीन तरह पे करते थे बिठा ना, सब के रोबोट की तरह की, प्रणाम करो। हाँ डंडा मार तब के हमें करवाया गया होमवर्क है। लगता लेकिन था अब कि हम लोग माइंडफुली करते हैं। दैट इज द माइंडफुली ब्यूटी ऑफ करते दिस हैं। यस। this classes, this sessions. That is the beauty of these sessions. One moment I'll take to answer the सूरज बावरी जी अगर हैं बॉस्टन से, यूएस से हैं, अगर वो अगर सेशन में आ जाएं तो प्लीज कांटेक्ट करिए। आप अपना मेरा नंबर आप कर सकते हैं कांटेक्ट, या फिर लाइक यू कैन drop in your phone number here in the chat box so that we can add you in the group. Actually from many days like you are wanting to get added into the group, but आपका वो नंबर शायद wrong था, इसलिए I couldn't add you in the WhatsApp group. So Mr. Suraj Bawri from Boston, if you are there in the session, then please drop in your number here in the chat box so that we can add you in our WhatsApp group. Yes, and I can see Ashwini ji is also like message. I am sure Bharti has been like very, Bharti is a blessing for us. She has explained everything. So yes, sir. Thank you so much for coming into the session after watching the YouTube link. So here we always carry on these sessions from 6 to 7:15, 7:30 a.m. in the morning. 7:15 actually. It got stretched, a little bit stretched today. So yes, we will be आप सारे के सारे जो सेशंस के जो वो वीडियोस है ना, वो देखेंगे तो आपको सारी प्रैक्टिस का पता चल जाएगा, और भारती ने बता भी दिया है. So I welcome you all from the all parts of the world. We are so blessed to have you here. And we have got many sharings. Sunita ji ka hand raised hai, Asha ji ka raised hai. तो हम लोग फटाफट से ले लेते हैं क्योंकि it's 7:30 and Yes. I too have to run now. Yeah, So only a yes, minute sharing. You were talking about euphoria and the mindfulness. So today morning, I thought full day I'm going to talk only positive, not the other thing. That moment only my husband said the geyser is not working. So generally that first that Okay. something comes out, I was so mindful. I said, "Koi baat nahi, I'll go to another bathroom." So that I was like, oh, win. Okay, this is what I thought, and that slightest way I didn't give that feeling, the other feeling. So I was very proud of it. That's the Like, beauty. mindful I was. That's That I'm going to be very that's the mindful. beauty of the sessions now. You have ingrained those things into your DNA now, है ना. तो इस तरह से हम लोग चाहते हैं, हम लोग कोई नेगेटिव सिचुएशन तो आएंगे. अगर पानी गर्म नहीं हो रहा, गीजर इज नॉट वर्किंग इन वन बाथरूम बट इट माइट बी वर्किंग इन अदर बाथरूम. अगर लाइट ही नहीं है, पानी गर्म ही नहीं हो सकता, स्टिल वी कैन heat that water in the gas stove and we can take a bath out of that, right? So Yeah. we will have plethora of other options. We will look into the options there. So yes, Yeah, thank you I so was much. just And thought, Ashwini ji, I'm sorry. Yeah. You are a female, so great to have you. Thank you so much. Thank you. Yeah, Thank you we so have, much. thank you, Sunita ma'am. Thank you so much. Love to Thank see you in you. the sessions. आप नहीं आ पा रहे थे कुछ टाइम से, but love to see you here. Thank you so Yeah, much. even I enjoy Dipti ma'am's sessions a lot. Yeah, we all do. We all do. The way Thank you so much. it flows like it's magical. I keep hearing again and Absolutely, again. absolutely, Thank you. absolutely. Thank So you, हाँ जी, Priya. आशा जी आप बोलना चाहते हैं कुछ? हेलो मैम, मैं आशा जी मैं sharing will सौम be like हाँ आप बोलिए. Last but not the least, we'll be logging off after that because it's like already 7:33. Yes, ma'am. आशा जी बोलिए. हाँ, मैं सौम्या जी को थैंक्स कहना चाहती हूँ. मैं बहुत दिन से इनसे मिलना चाह रही थी. ग्रुप में इनके मैसेज आते हैं
तो आज मेरी ये विश पूरी हुई, मैंने इनको देख लिया कि कौन है सौम्या जी। मतलब बहुत थैंक यू आपको, जो आप डेली चैप्टर का लिस्ट दे देते हैं, अफर्मेशंस दे देते हैं, तो मैं उनको लिखती हूँ। तो आपको बहुत मतलब थैंक्स अटन। Thank you so much. Thank you so much. This is so sweet. You made my day. Thank you. Yes, Soumya. Everyone is going to make your Same day, my you know, words. Same my I words, also Soumya. get like, I also get so much, appreciations for Soumya, कि Soumya को ये message, Soumya को ये message, Soumya, thank you from the bottom of all our hearts, whatever you're doing now, that's a great thing. आप बैठ के लिख पाना इस मतलब इतना इजी नहीं है, पूरा का पूरा सुनकर उसको पूरी की पूरी उतार पाना, वो एक जो आपको पता है ट्रांसक्रिप्टर जो होता है ना, वो भी नहीं कर पाते इतने अच्छे से जितने अच्छे से आप कर लेते हो. So thank you so much for coming into our life like a little fairy and you are blessing us all. So thank you so much. हाँ जी सूरज जी, मैं आपका नंबर लिख लेती हूँ. So Yeah, I have I'll taken the add you. screenshot. I have taken the screenshot. I will share it with you. Great, my high tech friend. So thank you so much. Thank you so much everyone for coming into the session, listening to me so mindfully, so carefully. And I tell you always now, you are the best listeners of the whole universe. Thank you, So much. Tia. Thank you so much, Priya. ma'am. You are Thank so you so sweet. much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Another chapter, and we will not forget to do the practice Thank today. you. We will do the practice very mindfully. And Rhonda Bal ने हमें एक लाइफलाइन भी दिया हुआ है ना, कि अगर हम लोग भूल भी जाते हैं, मान लीजिए थैंक यू बोलना, तो हम लोग आंखें बंद करके, हम लोग मान लीजिए लंच कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट को हमने थैंक यू नहीं कहा था, तो विल गो बैक टू दैट मोमेंट व्हेन वी वर हैविंग दोस ब्रेकफास्ट, तब हम उसको थैंक यू बोल देंगे. यस, थैंक यू सो मच. Thank you everyone. Let's log Priya off. ji, you are the Thank you. madam. Thank you, ma'am. Thank Thank you. you. Thank you. You are amazing.